Hi everyone. Hi. Good afternoon to all of you. Please keep joining. Okay. Okay. Please keep joining. So आप सभी मेंशन कर सकते हो आप लोग कहाँ से हो. Okay. Your location and your name please. सारे कोई अपना नाम और अपनी जगह का नाम मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे. And how many of you are comfortable with the Hindi and English? Please अपना language भी मेंशन कीजिए. Okay. Mesh. Coimbatore. Okay. From Pune. Gayatri from Pune. Okay. Ananti from Chennai. So all the Chennai and Coimbatore people will understand English, right? Okay, so I'll be talking in both the languages. Okay, because people are from other part of no city from different state, so they are comfortable in Hindi as well. Okay, so I'll be talking in both the languages. Hope you won't mind, girls. Okay, good. Bulandshahr. Okay, good. This time, a lot of people are from different state. I mean, different city, right? ओके इंग्लिश. ओके सो आई विल बी टॉकिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड हिंदी. मैं दोनों लैंग्वेजेस में बात करूंगी. हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में. ताकि सारे लोग कंफर्टेबल हो पाए. ठीक है. और सारे लोगों तक सारी इंफॉर्मेशन जाए. ओके गर्ल्स. सो आप मेरी दूसरे स्क्रीन देख रहे होंगे जिसमें नेल आर्ट वन डे वर्कशॉप लिखा हुआ है बाय मंजू लागुरी. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज मंजू लागुरी. आई एम सर्टिफाइड ग्लैम nail artist and as well as the trainer for you today. ओके सो मैं ग्लाम सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ. ठीक है. मेरा नाम मंजू लागुरी है एंड मैं पिछले 3 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ. सो आई बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम पास्ट 3 years and today you are gonna learn about the bridal nail art. So without further delay, let's get started. So I'll start with the one small presentation. So it'll help you to proceed very smoothly in this journey. ठीक है. तो बहुत ही एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं स्टार्ट करती हूँ ताकि आप लोगों को बेसिक से इंफॉर्मेशन मिल सके. सो lot of people are joining girls, so let them join also so that we'll go very smoothly on this. People who want to on their videos, they can on the videos as well. Okay, so right now we have a 50 participant, almost like 49 participants we have. Is anyone is joining here? Okay, the group has been created for you all. The WhatsApp group, there you will be getting all the informations regarding our all the workshops and classes which will conduct through online. Okay, offline I hardly take. Okay, so like we take very oftenly the online, but my offline sessions are like we have to plan for that. Okay, so the people who will be interested for the offline, let me know in advance. Okay, because I hardly take, we have to plan. When we have a good number of students, then we'll go with the offline. Otherwise, we don't go with the offline because a lot of people are from different state and different cities. So they won't be able to come to Chennai because I'm from Chennai, girls. Okay, so मैं चेन्नई से बिलोंग करती हूँ. सो बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है चेन्नई आ करके सीखना. इसलिए मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक क्लासेस, ये जो ऑनलाइन क्लासेस है नील आर्ट की, वो ऑर्गेनाइज करने की सोची. और होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. ठीक है. तो आज का प्रेजेंटेशन शुरुआत करते हैं. इसकी शुरुआत कर देते हैं हम लोग. एक पीपीटी आप लोग को, एक प्रेजेंटेशन आपको दूसरे आई मीन मेरी आईडी से दिख रही होगी, तो उस पर फोकस करिए अभी. ओके, सो आई विल बी जस्ट ऑफ माई okay, I won't off the camera so that you'll understand. But my screen ko, which is in my left side, I'll be watching that one and I'll be explaining to you all. Okay. Hope you all won't mind. Okay.
सो किसी को कुछ पूछना है तो इन बिटवीन मत पूछना. लेटर ऑन विल बी हैविंग अ क्वेश्चन Q&A सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन. ठीक है, जो भी क्वेश्चन आंसर की सेशन होगी वो हम लोग बाद में करेंगे, जिसको जो भी पूछना है. बिकॉज इफ आई विल बी फोकसिंग ऑन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, आई वोंट बी एबल टू कंप्लीट द होल थिंग, ओके, इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम. होप you'll अंडरस्टैंड एंड कॉर्पोरेट. ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं. ओके, सो टुडेज वर्कशॉप इज ऑल अबाउट द ब्राइडल नेल आर्ट वर्कशॉप. ओके, आज का जो हमारा जो प्रोग्राम है, वन डे वर्कशॉप है, वो ब्राइडल नेल आर्ट के ऊपर है. तो मैं आप लोगों को ब्राइडल नेल आर्ट की पूरी जो कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं, द ब्राइडल नेल आर्ट विच वी डिजाइन फॉर ब्राइड्स, विल बी वॉचिंग हियर. ओके, ड्यूरिंग दिस सेशन. सो फर्स्ट विल गो विद द बेसिक्स. फर्स्ट आपकी बेसिक्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी नॉलेज होनी चाहिए अबाउट दी you know about the anatomies and all. So I'm just going through the little anatomy in this. So as I talked about myself, my intro, that I've been into this industry for more than 3 years, 3+ of years, and I'm a glam certified nail artist and a coach. Okay, so हिंदी वालों, समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ? कोई प्रॉब्लम है? इतनी इंग्लिश आती है सबको, राइट? कुछ अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन मेंशन मी ऑन चैट. ओके, चलो नेल एनाटॉमी देखते हैं, नेल स्ट्रक्चर देखते हैं. तो नेल स्ट्रक्चर जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना, ये पूरे आपके नेल, जो आपका नेल होता है फिंगर के अराउंड जो एरिया होता है, दिस इज आवर नेल एरिया. ओके, इसमें सबसे पहला पार्ट जो है, मैं आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम. ओके, मैं सबसे नीचे से शुरुआत करती हूँ. सबसे पहले ये मेंटल है. ठीक है, मेंटल को बाद में जानेंगे. दिस इज और मोर कोर, बहुत ही ज्यादा डेप्थ वाला पार्ट है. ठीक है, तो ये यहाँ पे आप जैसे डॉट डॉट देख रहे हो, ठीक है, और ये इस तरह पॉइंट आउट हो रहा है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स. ओके, दिस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स. सो मैट्रिक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर नेल. ओके, फ्रॉम हियर द नेल ग्रोथ स्टार्ट्स एंड ऑल. ओके, एंड गिव अ लॉट ऑफ, आई मीन, प्रोटीन टू योर नेल्स एंड ऑल. फूड जहां से नेल्स लेना शुरू करते हैं, दैट पार्ट इज दिस. ओके, so this is the bottom, very bottom part of your nail, inside part of your nail. निचला भाग है ये नेल का. ठीक है, ये विजिबल नहीं होता है जनरली, आप इसे नहीं देख पाओगे. ये वाला जो पार्ट है, आप जैसे देख रहे हो, एक पतली सी कर्व लाइन बनी हुई है, ठीक, मैट्रिक्स के ऊपर. ठीक है, ये इनर पार्ट है. दिस साइड पार्ट इज टोटली द इनर पार्ट, जो कि आपको आपकी आंखों से, मतलब आप जब नेल को देखोगे, विच व्हेन यू विल सी योर नेल, इट वोंट बी विजिबल. ओके, सो दिस इज द इनर मोस्ट पार्ट, इनर मोस्ट लेयर्स ऑफ आवर नेल्स. ओके, दिस इज द अपर मोस्ट लेयर पार्ट. सो फर्स्ट अपर मोस्ट लेयर पार्ट को मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ. सो दिस पार्ट विच इज इजिली विजिबल इन योर नेल, जो कि आपके नेल में सबसे ऊपरी भाग, जो इस तरह की लाइन आपको दिखती है कर्व में, दैट इज कॉल्ड अ क्यूटिकल. ठीक है, ये क्यूटिकल पार्ट है. एंड देन आपको हाफ मून शेप में एक पार्ट दिखता है. द हाफ मून शेप इज visible in your nails, that is called lunula. Okay, so this two will you'll see easily in your nail tip. तो ये जो दो पार्ट है, ये आपको बहुत ही इजीली आपके नेल्स में विजिबल होते हैं. ओके, एंड द थर्ड इज नेल प्लेट. जो आपका ये जो फर्स्ट नेल का जो ऊपर वाला प्लेट है, दैट इज कॉल्ड योर नेल प्लेट, जो नाखून आप बोलते हो. ओके, नेल्स विच यू से नेल्स, दैट इज योर नेल प्लेट. एंड दिस इज द फ्री एज. Okay, so this things you see in your nails, right? Next, when we now we talk about the inside part. अभी हम लोग अंदर वाले पार्ट के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं. So as I told, this is the innermost layer, and the no it it's generally, I mean, no, सबसे पहला पार्ट जहां से नेल की शुरुआत होती है, वो यहाँ पे मौजूद होता है, मैट्रिक्स. ओके, दिस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स. यहाँ पे नेल्स के लिए खाना वगैरह, मतलब प्रोटीन्स बनता है. हियर द प्रोटीन्स एंड ऑल एवरीथिंग, यू नो, एवरीथिंग फॉर्मेशन जो होती है, प्रोटीन की फॉर्मेशन वगैरह होती है, नेल की जो फॉर्मेशन होती है, वो मैट्रिक्स वाले भाग में होती है. ओके, so this part only the food, the proteins nails get from there. Okay, next is nail bed. ये है nail bed. Okay, so this is this place,
especially the nail bed will be just beneath your nail plate. ये just nail plate जो है आपका, ठीक उसके नीचे ही आपका nail bed होता है. ओके, सो नेल बेड जो आप पिंक कलर की देखते हो ना, स्किन, लेमन भाषा में समझाती हूँ, जो नीचे की जो स्किन होती है, हु कैन नॉट सी, सबको प्रॉपर दिख रहा है? एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन? इट्स क्लियर? See, I'm talking in both the languages because here the people are from different state and they are comfortable with Hindi as well. Okay, everybody doesn't know the language English, so that's why you have to cooperate. Okay, I'll be talking in both the languages and everything I'm explaining in both the languages, Hindi as well as English. Okay, who's not able to see the screen? Screen किसको नहीं दिख रहा है? आप अपना कैमरा ऑन करिए यहाँ से तो प्रॉपरली एवरीबॉडी कैन सी. ब्लैक स्क्रीन सबको आ रही है? यस, नो, मे बी. ब्लैक स्क्रीन, आर यू गेटिंग? यस. ब्लैक स्क्रीन आ रही है सबको? यस फॉर व्हाट? स्क्रीन दिख नो रहा है मैम. उसके लिए यस है, हाँ, या स्क्रीन नहीं दिख रहा है उसके लिए यस है? दिख रहा है. ओके, ब्लैक स्क्रीन नहीं आ रही है, सो ओनली वन इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम, राइट? मैम, मे बी आपके कैमरा के आगे कुछ ब्लैक सा आपका कुछ आपने जहाँ पे स्टैंड करवाया होगा वहां पे कुछ होगा, या फिर आप उसी लिंक से रीजॉइन हो जाइए, आपको दिख जाएगा. ओके, so the people, this session will be recorded for the 45 minutes. So what you will do, you'll be rejoining with the same link. Okay, so मेरा जो ये sessions है ये record हो रहा है, तो 45 minutes में ये जो session है ये close हो जाएगा. तो आप लोगों को क्या करना है, same link से आपको फिर से rejoin होना है. Okay, you have to rejoin again after 45 minutes when it will get log off. Okay, so recordings will be shared to everyone, so that's why we are doing this. Okay, hope you all won't mind. और कोई भी मुझे यहाँ पे, because it's a free session, I'm not going to give any kind of certificate, so please don't ask me for that. कोई भी यहाँ पे, ये free sessions है, तो free sessions के लिए मैं कोई भी certificate नहीं दे रही हूँ, तो please मुझसे certificates की डिमांड मत कीजिएगा. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं knowledge दे रही हूँ. I'm just sharing only the knowledge. Okay, तो knowledge लेना है तो be here with us. knowledge चाहिए तो आप लोग यहाँ टिके रहिए, वरना सर्टिफिकेट की एक्सपेक्टेशन से प्लीज आप अभी ही लॉग ऑफ कर सकते हो. ठीक है, बिकॉज आई क्लियरली मेंशन इन द बैनर इटसेल्फ देयर इज नो सर्टिफिकेट एट ऑल. ओके, सो सर्टिफिकेशंस के लिए आप लोगों को काम करना पड़ेगा, राइट? यू हैव टू वर्क for the certification, you have to earn the certification. It should not be, I mean, given a free of cost, right? So knowledge I'm only sharing for the free of cost. Okay, fine, so we'll start. Rejoin हो गए हैं? ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेल बेड. नेल बेड आप लोगों को समझ में आया? जो आपका नेल प्लेट है, जो ऊपर की लेयर है, नाखून है, उसके नीचे एक पिंक कलर का पार्ट है. द लेयर विच इज जस्ट बीनीथ योर नेल प्लेट, पिंक कलर पार्ट, दैट इज योर नेल बेड. ओके, सो दिस पार्ट इज योर नेल बेड. जहां पे आपका नाखून जो है उसके ठीक ऊपर पे आपका नाखून है, इस नेल बेड के ऊपर आपका नाखून है. सो just above this, I mean, above this nail bed, your nail plate is. Okay, this nail plate is above this nail bed. So very important part of your nails. Okay, अगर आपको जरा सी चोट लगती, when you'll get hurt, it'll become pink, right? It'll get pink more and more because your nail bed get affected or your nail bed get hurt. Okay, next is nail wall. This is a nail wall. This corner, can you see here? मेरा एरो सबको दिख रहा है? एवरीवन कैन सी माय एरो? सो दिस इज अ नेल वॉल. ठीक है, ये नेल वॉल है. आपको नेल वॉल अगर ये दिख रही है तो इसको समझिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जो जो पार्ट में इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, प्लीज नोट इट डाउन बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड दिस इज अ नेल ग्रोव. जहां पे आपका नेल वॉल खत्म होता है एंड फ्री एजेस शुरू होते हैं ना, उस पॉइंट को we call it nail grove. The point where your nail walls end. Okay, and this line start. जब मैं बोल रही हूँ तो आप लोग अपने नेल्स को देखिए and try to understand what I'm trying to say. Okay, it's getting recorded, Kitana. Okay, so here
when you are just seeing this one, here you can see nail groove is coming. Okay, so this part is called nail groove, जहाँ पे आपका nail wall is getting ended. So these are the nail wall areas. Okay, both the side it's a nail wall, and from where the free edge start and that line it balance. एक nail आपका जो free edge है ना, जिसको support मिल रहा होता है from the corner, जहाँ पे आपकी नेल बेड खत्म हो रही है, नेल वॉल खत्म हो रहा है, उसके बाद एक पतली सी लाइन जो निकल के आती है, दैट इज कॉल्ड अ नेल ग्रोव. ओके, एंड दिस लाइन जस्ट नेल वॉल का ये जो कर्व है, इफ you'll open your finger like this, okay, you'll see your nail wall is getting, I mean your nail bed is getting ended. From there, nail bed is, I mean free edge is starting. Okay, so that particular area is called hyponachium. Okay, so hyponachium क्या करता है? What hyponachium does is it protect you from any kind of fungal infection, any kind of dirt, any kind of water, water going inside in your nail bed. Okay, so it's kind of a waterproof layer for your nail bed. So hyponachium is very, very important part. Okay, hope you understood all here. Clear? We'll move ahead. Okay, now we'll talk about the shapes. Okay, nail shapes कितने type के होते हैं? How many types of nails are here? Okay, so can you see? I mean, in picture, it's clearly like the shapes are visible here. It's called square shape. ये square shape है, ठीक है? अगर shape कुछ इस तरह का रहता है किसी के nail में, तो this is called a square shape. Okay, this is called a oval shape. दिस इज स्क्वायर ओवल. ये स्क्वायर एंड ओवल का मिक्सचर है, ठीक है? ना तो ये पूरा स्क्वायर है, ना तो ये पूरा ओवल है. दिस इज नॉट अ फुल्ली स्क्वायर नॉर अ like fully oval. Okay, so this is a combination of square and oval. Okay, this is almond shape. This is a almond shape. Okay, and this is a berlina. This is also called as a coffin shape. ठीक है, ये कॉफिन और बैरलिना दोनों शेप है. देख रहे हो, इस तरह से एज रहेगा, ये पूरे कॉफिन के शेप में है. सो दिस इज काइंड ऑफ अ कॉफिन आल्सो, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ कॉफिन शेप आल्सो, एंड बेरेलिना टू. ओके, एंड दिस इज अ almond, most demanding shape of a your I mean nail shapes. Okay, and this is stiletto and almond. You can see the difference. almond में little bit इसमें आपको एक थोड़ा सा oval effect दिखेगा, but in stiletto you'll see the pointy edge. Okay, so this is called a stiletto. So these are the major shapes you have to learn or you have to do in your daily practices. Okay, when you are a nail technician. Got it? Okay, let me check the messages. Oval and round shape सेम. ओवल एंड राउंड शेप जो है सेम नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप ओवल कर रहे हो तो थोड़ा आपको मीडियम रखना पड़ता है. ओके, व्हेन यू आर कीपिंग द ओवल you have to keep little bit length in that, and round it'll be like your original nail. Okay, it's just like a small free edge, but you'll make it as a fully round. Okay, the shape is more or less like same, but because of the length it will become a oval. Okay, when you keep it shorter it become a round. अगर आप उसको छोटा रखेंगे तो वो होगा राउंड शेप. व्हेन यू कीप इट लिटिल लेंथ, अगर आप उसमें लेंथ ऐड कर रहे हो तो वो बन जाएगा ओवल. अंडरस्टूड? यही डिफरेंस है. ओके ओके, सो नेक्स्ट नेल आर्ट प्रोडक्ट्स. अभी देखो, आप नेल इंडस्ट्री में आते हो तो कुछ प्रोडक्ट्स जो है विच इज अ वेरी वेरी एसेंशियल प्रोडक्ट्स. ओके, विच यू हैव टू कीप इन योर वैनिटी. दीज आर द बेसिक प्रोडक्ट विच यू रिक्वायर्ड. ओके, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे आपको एक लैंप है जो कि मस्ट होती है. ठीक है, नेल आर्ट के इंडस्ट्री में जब आप आ रहे हो तो दिस एलईडी लैंप इज मस्ट. You need to keep a good quality of buffers. Buffer also comes in a various, I mean, various numbers and ranges. So these numbers and ranges I'll explain later. Then you need a brushes. Okay, if you have to do any kind of art, sort of art, कोई आर्ट करना है आपको, तो आपको ब्रशेस की जरूरत होगी. देन यू नीड अ काइंड ऑफ अ फाइलर्स, सॉरी, यू नीड अ, दिस इज अ क्यूटिकल ऑयल.
Okay, and this is a part of a, like, like cuticle remover products and all, tools and all. Okay, and then you need a drill machine. ये drill machines के like bits है, ठीक है. And then you need a what to say, tips and all. इस तरह के tips आपको जरूरत पड़ेंगे. So you can have a variety of tips in your vanity which is required. देखो अभी एक एक कर ये कितने की है ये मत पूछो. I'll tell you in later, okay? क्योंकि बजट जो होता है वो आप जो खरीदोगे ना वो टोटली आपके बजट पे डिपेंड करता है. ये 150 रुपए से लेकर के 500 तक की रेंज की आती है, 1000 रेंज की आती है, डिपेंड ऑन ब्रांड टू ब्रांड. ओके, सो आपके पॉकेट पे डिपेंड करता है आप कितने वाले ब्रांड पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मतलब कौन से ब्रांड पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और कितना का बजट है आपका. तो प्रोडक्ट तो टोटली आप पे डिपेंड करता है. ओके, इट्स नॉट अबाउट कि एक एक प्रोडक्ट जो है कि आपको मतलब इतना का मैंने बोल दिया तो इतना ही खरीदना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो मेरे जो भी प्रोडक्ट है वो सारे ग्लैम के हैं बिकॉज आई एम ग्लैम सर्टिफाइड. और कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो मैं मतलब रीजनेबल बजट वाले भी लगती हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स को मैं वो भी ऑप्शंस दे सकूं. तो वो मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को, पहले हम लोग अभी आगे देखते हैं. ओके, सो नेक्स्ट हमारा ड्रिल मशीन है. ठीक है, उसके बाद हमें टिप्स चाहिए होते हैं, तो टिप्स आप अपने क्वालिटी के हिसाब से टिप्स को पिक कर सकते हो. देन वी नीड अ डस्टिंग ब्रश. ओके, देन वी नीड अ नो ऑरेंज स्टिक्स. ये डिपेंड टूल है. ठीक है, इस तरह के मतलब हार्डली इट्स रिक्वायर्ड, especially for the toes it's required but it's not required for the fingers. Then we have some accessory tools and all. Nail cutter. Okay, we need a kind of a glues. We need a base coat, we need a top coat. ठीक है, these are like poly gels and all, and few nail polishes. So there are many number of tools. if मैं अभी आपको tools बताने जाऊँ तो बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो मैं अब जब प्रैक्टिकल दिखाऊंगी तब मैं आप लोगों को टूल्स इंट्रोड्यूस कर दूंगी. या फिर एक मिनट रुकिए, मैं आप लोगों को एक एक करके टूल्स दिखाई देती हूँ. 1 second, फॉर दैट आई हैव टू, सॉरी कुछ तो हुआ है. ओके, सो मैं कैमरा जस्ट घुमा रही हूँ. सो स्क्रीन दिख रहा है राइट, आई मीन व्हाइट बोर्ड दिख रहा है राइट. सो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ. तो जैसे टूल में आप लोगों को जो प्रोडक्ट्स चाहिए उनको ही मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ. तो मेरे पास कुछ यहाँ पे फाइलर्स है. देखो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फाइलर है जो कि मैं बहुत ही समय से यूज कर रही हूँ. तो मोस्टली मेरे पास ग्लैम के फाइलर्स है, कुछ कुछ शिल्स के भी है. ठीक है, कुछ कुछ सिल्स के भी है. तो जिस ब्रांड का मुझे फाइलर्स अच्छा लगता है मैं वो ले लेती हूँ. तो ये जो फाइलर्स है ये डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस सॉल्व करते करते हैं. तो दीज फाइलर्स आर फॉर डिफरेंट पर्पसेस. ओके, कुछ मेरे हार्ड बफर्स वाले हार्ड बफर्स है, कुछ मेरे सॉफ्ट बफर्स है. उसके बाद जो आपको प्रोडक्ट चाहिए वो है टिप कटर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट. ओके, यू नीड अ टिप कटर, यू नीड अ नेल कटर, you need a cuticle remover. Okay, cuticle cutter. So these are the product which is in basic tool. Then उसके बाद आपको चाहिए होता है पुशर, एक डस्टिंग ब्रश चाहिए होती है. ओके, एक डस्टिंग ब्रश चाहिए होती है, क्यूटिकल पुशर चाहिए होता है. देन यू नीड अ टॉप कोट, बेस कोट. यहाँ पे मेरे टॉप कोट है, बेस कोट है. ओके, सो ये जो चीजें हैं मस्ट रहनी चाहिए आपकी वैनिटी में, इसलिए मैं दिखा रही हूँ. ये मेरे कुछ ब्रश के कलेक्शंस है. एक मिनट रुक जाइए. तो दीज आर माय फ्यू ब्रशेस कलेक्शंस. तो कौन से सारे ब्रांड्स के देखो, बिकॉज आई एम अ ट्रेनर सो आई नीड टू कीप अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रशेस. इसलिए मैं बहुत सारे ब्रशेस के कलेक्शंस रखती हूँ. ठीक है, जब ट्रेन करती हूँ तो किस ब्रश से क्या आर्ट करूंगी, फॉर एवरी ईच एंड एवरीथिंग आई रिक्वायर डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस. सो दैट्स व्हाई आई कीप अ ब्रशेस हैंडी. ठीक है, और भी ब्रशेस है बट बहुत सारे ब्रशेस आपको अभी यहाँ पे नहीं समझा सकती, है ना. देन यू नीड अ एसीटोन, आपको एसीटोन जरूरत होगा. तो मैंने एसीटोन की एक बड़ी बॉटल को छोटे से कंटेनर में कन्वर्ट कर दिया है. तो एसीटोन यू रिक्वायर्ड.
ओके, व्हेन यू डू योर नेल आर्ट देन यू रिक्वायर्ड अ ग्लू। अब मैं प्रोडक्ट की तरफ आ रही हूँ। आई नीड अ ग्लू। तो मैंने 401 ग्लू लिया है। ठीक है। देन यू नीड अ काइंड ऑफ अ नेल पॉलिश। सो दीज आर ऑल जेल पॉलिशेस। ठीक है, ये सारे जेल पॉलिशेस है। आपको ये नॉर्मल बाजार में मिलने वाले पॉलिशेस नहीं है। इसको आपको फ्रॉम द डीलर और सप्लायर यू हैव टू टेक दिस पॉलिशेस एंड ऑल। सो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड जेलिश। ओके। सो ये जो प्रोडक्ट है ये सारे आपको डीलर सप्लायर से ही मिलेंगे। देन यू नीड अ ड्रिल मशीन। आप किसी भी तरह का ड्रिल मशीन ले सकते हो, अपने बजट के अकॉर्डिंग ही आप खरीदिए प्रोडक्ट को। ठीक है। व्हाट एल्स? तो ये मेन प्रोडक्ट है। देन वी नीड अ डिहाइड्रेटर एंड प्राइमर। आई शो यू। So these two are the dehydrator and primer. So this is a product from the brand called Glam. ये ग्लैम से है। तो इसका डिहाइड्रेटर एंड प्राइमर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, दिस टू प्रोडक्ट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग हियर। देन यू नीड अ लिंट फ्री वाइप्स। सो इस तरह के लिंट फ्री वाइप्स आते हैं। ये लिंट फ्री वाइप्स क्या होते हैं? ये दीज आर द बेटर ऑप्शंस फॉर ऑल द नेल आर्टिस्ट रेदर देन यूजिंग अ कॉटन्स। कॉटन्स यूज करने से ज्यादा अच्छा ये होता है कि आप लिंट फ्री वाइप्स यूज करें, क्योंकि जो कॉटन्स के जो फाइबर्स होते हैं ना, वो आपके नेल में चिपक के आपके नेल आर्ट को खराब कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वी प्रेफर दिस काइंड ऑफ लिंट फ्री वाइप्स। ओके। तो ये सारे जो है प्रोडक्ट्स हैं, और भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट उसको मैं अभी एक दिन के कोर्स में सारी प्रोडक्ट्स आपको नहीं दिखा सकते। ठीक है। तो अभी जस्ट मैं एक कैमरे को घुमाती हूँ। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मैं नहीं दिखा सकती यहाँ पे। 1 सेकेंड। ओके। सो विल मूव ऑन टू दी पीपीटी अगेन। पीपीटी की तरफ जाते हैं।
ये जूम मीटिंग है, आप लोग प्लीज मुझे कॉल मत कीजिए, प्लीज मुझे व्हाट्सअप मत कीजिए, मैं आ जाऊंगी, ठीक है। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा काम है, मैं करूंगी, ठीक है। सॉरी अगर दीदी, मैंने कुछ ये कमिटमेंट क्लास किया में है पूछ तो रहे मुझे थे। वो निभाना आता है और मैं करूंगी। बट प्लीज आप लोग पैनिक हो जाते हो, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ अ गर्ल्स, बहुत पैनिक हो जाते हो, दिस इज अ बैड गेस्चर। इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ओके। जब किसी ने कमिटमेंट किया है तो जाहिर सी बात है कोई टेक्निकल ग्लिच होगी, दैट्स व्हाई दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग यू इमीडिएटली। बट इस तरह से आप शोर करके ना उनको पैनिक कर दे रहे हो, है ना। तो जो चीज की मैंने कमिटमेंट की है वो पूरा होगा, पूरा मैं सिखाऊंगी। इतने लोग परेशान हो जाते हैं कि दे आर कंटिन्यूअसली कॉलिंग मी, तो मैं सिस्टम को ही हैंडल नहीं कर पा रही, मतलब सिस्टम ओपन ही नहीं कर पा रही थी। तो लोग कंटिन्यूअसली कॉल करते हैं, तो ऐसा मत करिए, ठीक है। आप लोग अपने मतलब ठीक है, आप एक्साइटेड हो इसलिए कर रहे हो, बट दूसरे को परेशानी होती है इससे, ठीक है। अभी जैसे कि मैं कनेक्ट ही नहीं पा रही बिकॉज पीपल आर कॉलिंग मी, फोन से कनेक्ट होना है, राइट। बट फोन ही इंगेज रहेगा तो सिस्टम कैसे उसको लेगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ somebody इज वर्किंग, आपको मैंने नंबर दिया है तो उसका गलत उपयोग नहीं करना है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि हम लोग एक ही टाइम पे 10 चीज फोन पे नहीं कर सकते। अगर मैं खोल रही हूँ सिस्टम, आप तुरंत उसी समय कॉल करोगे तो इट्स टेक्स टाइम, इट्स डिफिकल्ट, राइट। सो प्लीज समझा करिए आप लोग ना, कुछ कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिसको टाइम लगता है। आई अंडरस्टैंड, थोड़ा सा हर्ट फील होगा, बुरा फील होगा, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। पीपल आर कंटिन्यूअसली कॉलिंग मी, मैं काट रही हूँ उनका कॉल, फिर कॉल कर रहे हैं, काट रही हूँ फिर कॉल कर रहे हैं। सो ये क्या है गर्ल्स, ठीक है, समझिए आप लोग। इसकी वजह से बाकियों को भी पर्सनली परेशानी हो रही है ना, बाकी लोग भी है कनेक्टेड है, 50 पीपल आर कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई आई वोंट पर्सनली टेक इन जूम, मैं लाइव में सबको उतारती हूँ फिर। लाइन से ठीक ओके, बनी सो मार्केट अभी हम लोग होने एक्सप्रेस से मैनिक्योर देखने पहले। वाले हैं, ठीक है। आपका तो जल्दी से एक नहीं फास्ट बनना है, दो क्विक एक्सप्रेस बोल्ट मैनिक्योर का वाले ना उसे सेशन आपको देखेंगे, ठीक है। हाथ के अंदर कर तो देना, अभी सबसे ओके। पहले हम लोग सीखते हैं एक्सप्रेस लाइन मैनिक्योर। मैं अपने कैमरे को घुमा लेती हूँ, कैमरे डबल का एंगल लाइन घुमा लेती हूँ टुवर्ड्स माई के टेबल। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, डबल लाइन पर जो लास्ट कॉर्नर में बनाया वो भी हल्का सा ठीक है। मुझे थोड़ा समय बल्कि आप दीजिए, मैं कैमरे को घुमा रही हूँ। चार लाइन पे जो चेक्स बनाया ना उसके लिए सबसे पहले बॉक्स बनाना जरूरी है, उसके बाद लाइन ड्रॉ करना है, ओके। आई बाकी अंडरस्टैंड, आपने इंस्टा पे ही क्लास अच्छा होता है, तो जो लोग मुझे इंस्टा बिल्डिंग में फॉलो करते हैं वो इंस्टा में क्लास ले सकते हैं, ठीक है। जो आपने मैं म्यूट बनाया हूँ ना क्या, वो एम आई बनाया, ऑडिबल नाउ, लाइन सुन ड्रॉ पा नहीं रहे हैं, की, व्यक्ति के अंदर शेडिंग से लाइन ड्रॉ की, वो नहीं करना है, ओके। सुन पा रहे हैं आप और लोग सब मुझे। थोड़ा सा ठीक है, बल्कि वो मार्केट के कौन सा कराना आपने, इसलिए फिनिशिंग कम आई है, ओके। बाकी ठीक है। यस, नो। मैम किसी का माइक ओपन हो रहा है, उसे बंद करवा दीजिए। आप बोलेंगे तो वो बंद कर देगा, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। सुन पा रहे हैं आप सब, यस, नो, मे बी। किसी ने अपना माइक ऑन किया है क्या। यहाँ से तो मैं सबको रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ, ऐसे तो माइक किसी की सुनाई देगी नहीं, ठीक है। ऑल आर म्यूटेड हियर, ठीक है। मैं किसी को, हाँ, सबको मैंने म्यूट करके रखा हुआ है, तो किसी की तो आवाज आनी नहीं चाहिए सिवाय मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, देखो, ना तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में किसी से चैट कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रिक्टली ऑर्डर है। मतलब इस तरह से मैंने डिजाइन किया व्हाट्सएप को कि आप उसमें किसी से चैट नहीं कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे मैसेजेस और मेरे क्लासेस से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिलेगी। क्योंकि बहुत लोग कैसे ये करते हैं ना कि किसी के और के ग्रुप में आ करके वो फिर अपना प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैंने व्हाट्सएप को इसी तरह से डिजाइन किया है कि आपको सारे नॉलेज सिर्फ नेल आर्ट से रिलेटेड और मेरे द्वारा जो क्लासेस है वही, उसके ही डिटेल आपको शेयर होते हैं वहां पे, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी जूम को म्यूट करके रखा है, कोई चैट और नहीं कर सकते। अगर आपको पूछना है मैसेज के थ्रू या फिर हैंड रेस कीजिए, बात करनी है, मैं आपको अनम्यूट करूंगी, ठीक है। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। आई एम सॉरी, आई एम बिट हार्श, बट लोगों को समझ ही नहीं आती, है ना। थोड़ा हार्श होना पड़ता है जब लोगों को समझ नहीं आता।
Okay, so let's get started. अभी यहाँ पे शेयरिंग में स्टॉप कर रही हूँ एंड देन उसके बाद शेयरिंग फिर से ऑन कर दूंगी, तो ये मेरा अब यहाँ से सारी चीजें आप लोग देखोगे, ठीक है? ओके ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक फिंगर है, ठीक है? दिख रहा है क्लियरली सबको? हम्म। तो आप लोग को अगर आपको जो भी बात मैं कर रही हूँ, द थिंग्स विच आई एम टॉकिंग हियर, यू हैव टू लिसन एंड यू हैव टू वॉच द प्रोसेस। जो भी मैं बोल रही हूँ, कर रही हूँ, आपको सुनना है और देख करके समझना है। आई अंडरस्टैंड कि जूम में इतना ही जूम होता है, ठीक है? इससे ज्यादा मैं जूम नहीं कर सकती, अदरवाइज क्वालिटी क्रैक हो जाएगी, ठीक है? तो आप लोगों को समझना है क्या क्या टूल मैं यूज कर रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी आप नेल पे वर्क करते हैं, तो ये हम लोग जो कर रहे हैं वो एक्सप्रेस मैनिक्योर कर रहे हैं। वी आर डूइंग एक्सप्रेस मैनिक्योर नाउ। ओके, गॉट इट? तो अभी सबसे पहले आई विल टेक द क्यूटिकल ऑयल विच इज ऑल्सो नोन एज क्यूटिकल रिमूवर लोशन। ओके, आई विल टेक दैट वन। ये है मेरा ग्लैम का क्यूटिकल रिमूविंग लोशन। इसे मैं ले करके अपने ये जो क्यूटिकल है, एक लाइन पतली सी आपको दिख रही होगी, ठीक, उसके ऊपर लगानी है। और इसे थोड़े देर यानी कि 30 सेकेंड्स के लिए आपको छोड़ देना है। ओके, आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ अ क्यूटिकल पुशर, जो मैंने आपको एक टूल दिखाया था, क्यूटिकल पुशर। ओके, इस टूल की मदद से आपको इस एरिया को, क्यूटिकल एरिया को पुश करना है। ओके, यू हैव टू पुश द क्यूटिकल एरिया विद द हेल्प ऑफ अ क्यूटिकल क्यूटिकल कटर। ओके, सो मैं इसे देखो, इस तरह से आपको ये पुश कर देना है। ओके, तो ये क्यूटिकल ऑयल क्या करता है, ये आपके क्यूटिकल को सॉफ्टन करेगा, लूजन करेगा, सॉफ्ट कर देगा उस एरिया पे और लूज कर देगा, ताकि ये आसानी से पुश हो जाए। ओके, द क्यूटिकल ऑयल विल हेल्प टू soften your cuticle, okay, and so that it easily get removed from the cuticle area. Okay, so I'm just pushing this cuticle with the help of a cuticle pusher. Now this area is free, देख रहे हो? बहुत आसानी से पीछे जा रहा है। So what I am doing is, like, I am just making a area for my extension. Okay, so मैं यहाँ पे अपना एक एरिया क्रिएट कर रही हूँ for my extension। समझ में आया सबको? अभी मुझे ये जो क्यूटिकल है जिसको मैंने पुश किया है, ये इजीली मुझे विजिबल हो, इसके लिए मैं इसे थोड़ा पोंछ देती हूँ, ठीक है? आई विल जस्ट वाइप दिस वन so that the the pushed cuticles will be visible to me. Okay, now with the help of a cuticle cutter, I'll be cutting the cuticles. ठीक है? सो क्यूटिकल पुशर को आपको इस तरह से लेना है और स्लोली इसे क्यूटिकल को कट करना है। ओके, सो मेक श्योर योर क्यूटिकल पुशर शुड बी वेरी पॉइंटी। ओके, ये लिंट फ्री वाइप्स है, लिंट फ्री वाइप, और उसमें मैंने प्रेस किया एसीटोन। ओके, सो मैंने एसीटोन से थोड़ा सा जो लोशन लगाया था, क्यूटिकल ऑयल लगाया था, उसको वाइप किया मैंने। So now with the help of a cuticle cutter, I'm just cutting the cuticle. Excuse me.
सो कितने सारे फ्रेशर है यहाँ पे, कुछ एक्सपीरियंस हो गया, आई नो कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो फिर से वर्कशॉप करते हैं, देखते हैं मुझे, ठीक है। कुछ कुछ जो है फ्रेशर है, तो आप लोग में से जो फ्रेशर है वो मेंशन कर सकते हैं। आप लोगों को क्यूटिकल दिख रहा है? कैन यू एबल टू सी द क्यूटिकल? एक मिनट, जब मैं क्यूटिकल यहाँ पे रखूंगी तो आप लोगों को थोड़ा विजिबल होगा, ठीक है। आपको स्किन नहीं काटनी है, यू शुड नॉट कट द स्किन, जस्ट beneath योर स्किन देयर इज अ क्यूटिकल, यू हैव टू कट दैट। दिख रहा है? ओके, सो यू हैव टू कट दैट। अच्छे से क्लीन कर लोगे क्यूटिकल को तो वो आपका नेल जो एक्सटेंशन आप डालते हो उसके आड़े नहीं आएगा, ओके, एंड यू विल बी गेटिंग अ फ्री गुड स्पेस टू योर नेल टिप। तो ये मैंने क्यूटिकल कटर की मदद से क्यूटिकल को रिमूव कर दिया, ओके। ये मैंने बहुत अच्छे से निकाल दिया। तो बहुत सारे क्यूटिकल्स यहाँ पे निकल गए। तो अगर कोई कभी भी नहीं कराया होगा, आई मीन किसी ने कराया नहीं है, फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग विद दी नो दिस नेल एक्सटेंशंस एंड ऑल, for them it'll be more, since we are doing nail art and all, that's why she does not have much cuticle hair, okay, frequently she is doing a express manicure. So what we are doing here is, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग express manicure कर रहे हैं, and these are the process of express manicure, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? ये क्या हो रहा है, प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेस मैनिक्योर हो रहा है। तो हम लोगों ने क्यूटिकल ऑयल लगाया, क्यूटिकल पुशर की मदद से वी पुश दी क्यूटिकल, मैम प्लीज एक एंड बार देन वी रिपीट कर दो मैम। कट द क्यूटिकल। बार क्यूटिकल रिपीट कट कर कर दो दिया हम प्लीज। लोगों ने। अभी अगर कुछ बचा है ना, तो उसको इस तरह से आप कॉर्नर में से क्लीन कर सकते हो, इजीली वो निकल कर आ जाएगा। देखा? तो इस तरह से आप ये सब सेल्स है, डेड सेल्स है, जो कि आपको मिल रहे हैं, ठीक है। देखो सेशन 10 मिनट में फिर से पॉज होने वाली है, पैनिक मत होना प्लीज, ठीक है। 10 मिनट में अगर लॉग आउट हो जाते हो, सेम उसी लिंक से ज्वाइन करेंगे, ओके। वंस यू विल गेट लॉग आउट, प्लीज ज्वाइन विद द सेम लिंक, जो आपके ग्रुप में लिंक शेयर हुआ है ना, प्लीज उसी से ज्वाइन हो जाइए। आपको 5 मिनट में ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी फिर से, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। मैं यहीं पे हूँ, आपको सिखाए बिना जाऊंगी नहीं मैं, क्योंकि मेरा यही काम है, ओके। आई डू एवरी डे दिस। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पे पुशर आई मीन बफर की मदद से बफ करेंगे नेल को, ठीक है। तो एक्सप्रेस मैनिक्योर इस सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे जो 5 मिनट का टाइम लगता है वो रिकॉर्डिंग के लिए लगता है, सिस्टम है ना, रिकॉर्डिंग टेक्स टाइम। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड होके आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। लिंक विल बी शेयर्ड, आपको ग्रुप में ही इसकी लिंक मिल जाएगी। अभी देखो इसका टिप बड़ा हुआ है, ओके, फ्री एज है, ओके। इफ क्लाइंट वांट्स टू कट इट, इफ दे डोंट वांट, डोंट कट इट, ओके। सो इनको नहीं करना है कट, इसलिए मैं कट नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज यू कैन कट इट। हम थोड़ा सा ट्रिम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ शेप, कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ शेपर, ओके। एंड आपको ये देखो इसकी जो ग्रिड है ना बहुत हार्श नहीं है, तो आपको नेचुरल नेल्स के लिए इस तरह का बफर लेना है, जो कि थोड़ा स्मूथ ग्रिड है, रफनेस है बट इतना रफ नहीं, ओके। सो दिस इज फॉर योर नेचुरल नेल्स। बहुत लोगों जो को मुझे पे करता नेचुरल रहेगा। नेल के लिए कौन सा बफर लेना है, और
टिप के लिए, एक्सटेंशंस के लिए कौन सा बफर लेना है, वो बहुत लोगों को जानकारी जो है नहीं होती है। ओके, दिख रहा है? क्लियर है? तो अभी मैंने इसे क्लीन कर दिया। अभी इसके ऊपर ये है डिहाइड्रेटर और प्राइमर। क्लीन करने के बाद एसीटोन से अच्छे से वाइप कर लेंगे फिर से। तो ये मैंने लिया लिन फ्री वाइप्स। इस पे मैंने थोड़ा सा एसीटोन स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद बफ किया था इसकी, बफ करके इसकी मैंने स्मूथनेस, शाइन थोड़ी रिमूव कर दी। ठीक है, आपका नेल तभी चिपकेगा जब आपके नेल पे किसी तरह का ऑयल या फिर किसी तरह का हाइड्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट विच इज अ डिहाइड्रेटर, this is called a dehydrator. I'm applying a dehydrator, so this will help to dehydrate your nail. Okay, ये डिहाइड्रेटर आपके नेल को और भी ज्यादा डिहाइड्रेट कर देगा, बट एक पीएच बैलेंस को मेंटेन करते हुए। ओके, इट विल मेंटेन द पीएच बैलेंस ऑफ अ नेल, but it will dehydrate your nail. Okay, because it's required here. So this is the must product in your nail tip. And the second product is primer. ये मैंने प्राइमर इसके ऊपर जस्ट ऐड किया है। तो इस ये क्या करेगा, आपके ग्लू को, आप जो भी नेल टिप चिपकाओगे इसके ऊपर, उसको और भी स्ट्रॉन्ग होल्ड देगा। ठीक है, इट विल गिव दी गुड होल्ड टू योर नेल टिप। ओके ओके, जेल नेल पॉलिश को कैसे रिमूव कर सकते हैं वो मैं सेशन बाद का सेशन है तो बाद में दिखाऊंगी। ठीक है, ये दो, why do we dehydrate our nail? As I explained, you need to dehydrate your nail so that oil substance should not be there in your nails. Okay, oil नहीं रहना चाहिए आपके nails में. If the oil will be there, then you won't be able to stick your extensions. Okay, so to remove the oil, so remove the hydration of a nail, we use the dehydrator. Clear? Everybody clear? So dehydrator is first. Dehydrator is first, okay, and then you have to apply a primer. Watch clearly, girls. Everything I'm like applying and showing and explaining. Okay, so watch clearly so that you will understand the process. Okay, please system को छोड़ के कहीं मत जाइए, otherwise एक एक single point miss हो जाएगी. So you have to listen to me carefully. You have to apply dehydrator first and then you have to apply a primer. डिहाइड्रेटर का यूज क्या है? डिहाइड्रेटर आपके नेल से ऑयल को और पानी का जो सब्सटेंस होता है, यानी कि पानी होता है जो मतलब हाइड्रेशन होती है नेल पे, जो गीलापन मॉइस्चर होता है ना, उसको रिमूव करने के लिए डिहाइड्रेटर। एंड देन प्राइमर इज फॉर एडेसिवनेस, ये आपके ग्लू को और भी मजबूत बनाएगा, जो भी आप नेल के ऊपर चिपकाओगे ना उसको और स्ट्रॉन्ग कर देगा। It's for giving the adhesiveness to your nail. Whatever the extensions you will be sticking, it'll stay more stronger. So that's why these two products are important. Clear for everyone? Now, so this is the express manicure. Now your nail is ready to take any kind of further extension. Okay. So this is called the express manicure process. Clear hai sabko? Now we'll move to the further. Okay. Now I'll go with the share screen. Just a okay. Okay. So let other people join. अभी बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं हुए गर्ल्स. So let the other people join. So don't worry, आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं होएगा. ठीक है,
तो आप लोगों की ये रिकॉर्डिंग आपको सेव मिल जाएगी, और वो सेव होने के बाद आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। तो आप लोग बार बार सुन के समझ करके फिर अप्लाई कर सकते हो उस चीज को। नेक्स्ट, तो स्टार्ट करें हम लोग। मैं सॉफ्ट जेल के बारे में बता रही थी। जेल पॉलिश क्या है? बेसिकली दीज जेल पॉलिशेस आर सॉफ्ट जेल पॉलिशेस, जेल से बना हुआ है। तो ठीक है, ये नॉर्मली हवा से या फिर नो विद द एयर और विद व्हेन यू कीप नॉर्मली इट वोंट गेट ड्राई। इट्स नीड अ स्पेशल काइंड ऑफ लैम्प कॉल्ड अ यूवी लैम्प। ठीक है, आई विल बी डिस्प्लेइंग द यूवी लैम्प वेरी सून। सो दीज जेल पॉलिशेस last for 2 to 3 weeks with your extension, any kind of extension. Okay, सो ये दोनों सभी तरह के एक्सटेंशन के साथ लास्ट लॉन्ग करता है फॉर द 2 to 3 weeks। और रिजल्ट क्या है इसका? हाई शाइन है, इट्स इट डज नॉट चिप। अगर सही प्रोसेस से आपने इसको अप्लाई किया है अपने फिंगर्स में, सो इट डज नॉट चिप एंड इट वोंट क्रैक ऑल्सो। ओके, सो इट वोंट क्रैक, इट्स नॉट चिप एंड इट्स लास्ट फॉर 2 to 3 weeks, जो कि नॉर्मल नेल पॉलिशेस में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? क्लियर है? ओके, we'll go to the next. Now this is called a advanced ब्राइडल नेल आर्ट। ठीक है, तो आपको एडवांस ब्राइडल नेल आर्ट बहुत तरीके से आते हैं। तो आज हम लोग 3D एडवांस ब्राइडल नेल आर्ट देखने वाले हैं। आप लोग देखोगे तो मैं ये मेरे आई मीन द ओरिजिनल नेल्स के ऊपर नहीं करके दिखाऊंगी, मैं आपको टिप के ऊपर करके दिखाऊंगी, बिकॉज आवर मोटो इज टू अंडरस्टैंड दी नेल आर्ट। नेल आर्ट को समझना मोटो है, पूरा प्रोसेस को देखने में इट विल टेक मोर टाइम। ओके, यस, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। ओके, सो केयर एंड मेंटेनेंस में मेक्स, ये जो स्लाइड है इसको थोड़ा कंप्लीट कर देती हूँ, देन विल गो विद द प्रैक्टिकल्स। ठीक है, आपको ये सारे नेल्स जो एक्सटेंशंस आप कर रहे हो उसको मेंटेन कैसे करना है, हाउ यू हैव टू नेल को केयर एंड मेंटेन। ओके, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। सो यू हैव टू डू अ जेंटल क्लीनिंग। जब भी आप खाना खाने के बाद हैंड वॉश कर रहे हो या हाथ से खाना खा रहे हो, की ट्राई टू कीप क्लीनिंग। ओके, जेंटली क्लीन योर नेल आर्ट और नेल एक्सटेंशंस विथ एसीटोन। आप खुद भी जो मार्केट में एसीटोन्स अवेलेबल होते हैं उसकी मदद से आप उसको क्लीन कर सकते हो। ओके, देन ट्राई टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द हीट एंड वाटर एक्सपोजर। जितना ज्यादा आप पानी से बचाओगे अपने नेल को, उतना ज्यादा वो लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। और हीट से, ठीक है, कुकिंग करते वक्त आपको थोड़ा ध्यान देना है। वाटर एक्सपोजर, बर्तन धो रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मतलब पानी से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हो, यू हैव टू ट्राई avoiding those things for a when you are doing any kind of work from your hands and when you have extensions at your like fingers. Okay, so जब भी आप काम कर रहे हो, हाँ, हैंड के ऊपर टिप लगा के बताना। अरे बताऊंगी यार, वेट करो। मुझे थोड़ा ये खत्म, प्रेजेंटेशन खत्म करने दो। आप अकेले नहीं हो ना, लॉट ऑफ पीपल आर देयर एंड वी हैव टू शेयर द इन्फॉर्मेशन, राइट? तो जरूर बताऊंगी, चिंता मत करिए आप लोग। बिना बताए तो मैं भेजती ही नहीं हूँ किसी को। ओके, दिस इज नॉट माई फर्स्ट टाइम वर्कशॉप, दिस इज लाइक फोर्थ और फिफ्थ टाइम वर्कशॉप एंड बहुत अच्छा फीडबैक है, डोंट वरी। ठीक है, काफी लोगों को मजा आता है जब मैं एक्सटेंशन बताती हूँ, तो टेंशन मत लीजिए, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और पूरा कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, ओके। सो आप लोगों को नेल को बचाना कैसे है? यू हैव टू अवॉइड प्रेशर। कहीं पे भी अचानक से काम करते हो, जब डैश लग जाता है, कहीं पे हिट करते हो आप लोग, तो वो चीजों को आप लोगों को सावधानी से करना पड़ेगा। मतलब जितना हो सके हाथ को, मतलब आपको टिप की मदद से आपको काम करना है, ना कि आपको एक्सटेंशन की मदद से। अगर आप टिप की मदद से करते हो ना, ये यहाँ से उठाते हो, तो मे बी यूल गेट हर्ट और इंजर्ड। ओके, सो प्लीज डोंट डू दैट। ठीक है, आप जब एक्सटेंशन पहनते हो तो आपको बहुत ही सावधानी से आपको काम करने हैं, बिकॉज यूल गेट हर्ट। ओके, नेक्स्ट इज टॉप कोट एप्लीकेशन। अगर लगता है आपको कि आपके नेल में शाइन थोड़ी कम हो गई है, तो आप एक हैंडी टॉप कोट रख सकते हो और उस पे नॉर्मल जो नॉर्मली नेचुरली ड्राई होता है, आप क्योंकि हर चीज के लिए आप लैंप नहीं खरीद सकते, राइट? अगर खरीद रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है आपके पास तो नॉर्मल भी टॉप कोट, एक शाइन टॉप कोट आता है जो नॉर्मली नेचुरली ड्राई होता है, सो यू कैन बाई दैट टॉप कोट एंड गिव दी शाइन इफेक्ट टू योर नेल एक्सटेंशन। ओके, सो ये तो बात हो गई जो नॉर्मली नेल केयर करना चाहते हैं विदाउट एनी लैम्प एंड ऑल। ओके, तो दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग अ नेल केयरिंग। अंडरस्टूड? समझ में आया सबको? ओके, किसी ने चैट में मुझे लिखा है कुछ, देखती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ओके,
सो अभी नेक्स्ट देखती हूँ नेल केयर गाइडेंस फॉर नेल आर्टिस्ट। अभी नेल केयर क्या क्या करना है वो आप लोग समझ लो। एक्सेस करंट स्किल एंड गोल्स। ओके, ओ करियर गाइडेंस, ओके ठीक है, ये करियर गाइडेंस है। केयर एंड नेल केयर एंड गाइडेंस मैंने पढ़ा दिया है। तो करियर गाइडेंस अभी ये उन लोगों के लिए है जो लोग अपने आप को नेल आर्टिस्ट की तरह देखते हैं या आगे फ्यूचर में बनना चाहते हैं। ओके, और या फिर जो कि नेल आर्टिस्ट ऑलरेडी है बट समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ मुझसे मिस्टेक हो रहा है और किन किन चीजों पे मुझे ध्यान देनी है। तो वो इन चीजों पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ओके, तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग टू डू इन दिस। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग फोकस करते हैं और फोकस करवाते हैं अपने स्टूडेंट से। क्या क्या चीजें हैं करियर को लेके मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। बट लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक बिकॉज लॉट ऑफ न्यू पीपल आर हियर। सारे बहुत सारे नए लोग हैं तो उनके हिसाब से मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो एक्सेस करंट स्किल एंड गोल्स। तो जितने भी सारे अगर नेल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, बिगनर है, खुद के लिए करना है तो बात की बात है, एक दिन में आपने जो देखा है दैट इज मोर देन इनफ। आप आज की क्लासेस से बहुत कुछ सीख गए हो, आप खुद से कर सकते हो, इतना कर लो बहुत है। ठीक है, जो लोग अपनी करना चाहते हैं मतलब अपनी नेल आर्ट करना चाहते हैं, जो लोग इसमें एक बड़ा विजन देख रहे हैं, एक बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, ये उनके लिए है। उनके लिए मैं बता दूं, इसमें आपको जो है अगर आप नेल आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आपको इसकी स्किल्स आपको ये लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपको कोर्स करना पड़ेगा किसी प्रोफेशनल से और अपना नेल आर्टिस्ट का जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपरली लेनी पड़ेगी ताकि आप इसमें और भी अच्छा कर सके। अंडरस्टूड? क्योंकि कोई भी चीज है, ये जो है ना जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है। आपको ऐसा नहीं है कि मतलब ये कंप्लीट किया तो आपको गवर्नमेंट जॉब की तरह आपको एग्जाम लिखने हैं, एप्लीकेशन देना है, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज अ काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अभी आपने कुछ स्किल सीखा, उसके बाद आप सेम चीज को इम्प्लीमेंट करके अपना खुद का एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। so this is a kind of opportunity for the freshers or a housewife or a new student who have a passion of a nail art। जिनको नेल आर्ट का पैशन है, जिनको नेल आर्ट बहुत अच्छा लगता है और वो करियर में नेल आर्ट के प्रोफेशंस को आगे ग्रो करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, तो आपको एक स्किल एक्वायर करना पड़ेगा और एक गोल बनाना पड़ेगा कि आपको इस फील्ड में करना क्या है। ओके, नेक्स्ट इज बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। अगर आप इस फील्ड में आते हो तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका ऑडियंस कौन है। ठीक है, वो किस माध्यम से आप आपको अपने ऑडियंस को अप्रोच करना है। फ्रॉम विच मीडियम यू हैव टू अप्रोच योर ऑडियंस, वेदर इट्स अ सोशल मीडिया अप्रोच और इट्स अ डोर टू डोर अप्रोच लाइक अ फ्रीलांसर, और इट इज अ लाइक मेन रोड डोर अप्रोच। मतलब मेन रोड में सैलून खोल लो और उसके बाद आपको डायरेक्टली जो आपका शॉप दिख रहा है, स्टूडियो दिख रहा है, तो लोग डायरेक्टली आएंगे। सो देर इज अ 2-3 वे ऑफ अप्रोचिंग पीपल फॉर बिजनेस। ठीक है, 2-3 तरीके से लोग आते हैं। ठीक है, देर आर लॉट ऑफ वे, बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं कुछ कुछ को एक्सप्लेन कर रही हूँ जो आप लोगों ने अभी देखा है लोग करते हैं। ओके, सो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी अपनी, आपको काम दिखाना पड़ेगा अपना। ओके, सो प्रोफाइल बिल्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर बिल्डिंग दिस नेल आर्ट करियर। ओके, देन क्लाइंट रिलेशन। अगर सपोज आपको क्लाइंट को सर्विसेज देना है तो आपको क्लाइंट को अच्छा रिलेशन बना के ही रखना पड़ेगा। व्हेन यू आर आई मीन गिविंग सर्विस टू एनीवन, मतलब आप किसी को भी सर्विस दे रहे हो ना, तो उसके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना पड़ेगा। देन ओनली दैट क्लाइंट विल बी रिटेन टू यू। तभी जाकर वो जो क्लाइंट है वो आपके पास दोबारा से आएंगे। ओके, देन कंटिन्यूअस एजुकेशन। आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है, आगे और भी अच्छा करना है, तो आपको यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। आगे और भी कुछ करना होता है, आगे और भी बढ़ने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन एडवांस की बेसिक टू एडवांस, पहले बेसिक ले लो, फिर बेसिक टू एडवांस ले लो, फिर उसके बाद सुपर एडवांस होता है विच इज अ डिप्लोमा। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपने जो नॉलेज को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, तभी जाके आप प्रो कहलाओगे इस फील्ड में। यानी कि बहुत अच्छा आर्टिस्ट होने के लिए आपको इसमें अपने आप को झोंक देना पड़ेगा। अंडरस्टूड? उसके बाद है बिजनेस स्किल। आपका बिजनेस स्किल, आपको अपने आर्ट का स्किल के साथ साथ अपने बिजनेस स्किल्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि बिजनेस को आप 4 तरीके से कैसे बढ़ा सकते हो। मतलब एक तरीका तो सर्विस देके, उसके अलावा कौन कौन से तरीके हैं, उन तरीकों को भी आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और उस पर काम करना शुरू करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ यू विल बी expanding your business in a multiple way. Okay, so you have to learn that well. So business skill is also very very important. Next is marketing strategies.
मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है? आपको अपने बिजनेस के लिए आपने सोच लिया, आपने गोल प्लान कर लिया, स्किल लर्न कर लिया, ठीक है, आपने अपना बिजनेस मतलब स्किल अपना डेवलप कर लिया। अब आप मार्केट कैसे करोगे? कि कोई तो मतलब बच्चे से ही पैदा होके मार्केटिंग स्किल्स डेवलप करके नहीं आता है, राइट? तो मार्केटिंग स्किल्स सीखनी है आपको, अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना है वो सीखना है। तो दीज स्किल्स ऑल्सो यू हैव टू अक्वायर, ठीक है। उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी, ये सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दीज आर ऑल लाइक केमिकल्स। अब जो भी चीजें हैं चारों तरफ दुनिया में, जो भी चीजें, जो भी स्किल्स है ना, वो सराउंडेड बाय विद द लॉट ऑफ केमिकल्स एंड ऑल। आप मेकअप की बात कर लो, उसमें भी केमिकल है, प्रोडक्ट्स में क्या है, केमिकल ही है ना। बट उस केमिकल को कितना सेफ वे में आप क्लाइंट को सर्व कर रहे हो, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, है ना। अगर आप क्लाइंट को बहुत ही ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा डेली बेसिस में उसके इर्द गिर्द रह रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो आप उससे कैसे बच सकते हो, उन सब के बारे में आपको सीखना है, उन सब के बारे में आपको जानकारी लेनी है। तो दीज आर ऑल लाइक रिलेटेड टू योर हेल्थ अवेयरनेस, है ना। तो इन सबको हेल्थ एंड सेफ्टी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सारी चीजें जो है वो करियर गाइडेंस में होती है। ओके, कौन मेरे स्क्रीन पे इतना सुंदर आर्ट कर रहा है? ठीक है। तो अभी ये जो है मेरा ऑनलाइन मास्टर क्लास का डिटेल है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद तुरंत बाद ही मैं अपने नेल आर्ट को स्टार्ट करूंगी। तो ये मेरा 6 days का बेसिक टू एडवांस प्रो नेल आर्ट कोर्स होता है, जो कि ऑनलाइन होता है। दिस इज अ ऑनलाइन नेल आर्ट मास्टर क्लास, ठीक है। दिसंबर में, मे बी दिसंबर जनवरी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिप्लोमा कोर्सेज, बट बिफोर दैट the people who are a very beginner and want to learn from basic to advanced, उनके लिए ये कोर्स है, जिसमें मैं नेल एनाटॉमी और स्ट्रक्चर बहुत ही डिटेल में पढ़ाती हूँ, ठीक है। सबकी रिकॉर्डिंग्स होती है, और सबको मैं लाइव भी क्लासेस में लेती हूँ, सारे क्लासेस की, ताकि आपको रिकॉर्डिंग से भी समझ आए, बाद में कि अपने कन्वीनियंट टाइम में समझना है तो उसके लिए भी आपको समझ आए, इसलिए भी रिकॉर्डिंग्स मिलती है आपको। प्लस मैं लाइव आकर के भी सारी चीजें एक्सप्लेन करती हूँ, उसके लिए भी मतलब ऑनलाइन क्लासेस क्लासेस में वो प्रोविजन है। सो यहाँ पे मैं क्या क्या कवर करती हूँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं नेल एनाटॉमी एंड स्ट्रक्चर्स की कंप्लीट थ्योरी देती हूँ, द नेल टूल्स एंड प्रोडक्ट्स का कंप्लीट नॉलेज देती हूँ। यहाँ पे नेल आर्ट जो थ्योरी होता है वो बहुत इन डेप्थ नॉलेज में आपको नॉलेज मिलता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। अगर आपका क्लियर है ना, तो प्रैक्टिकल जो है बहुत ही ईजी हो जाता है। देन 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट नेल आर्ट एक्सटेंशन। पहले ये जो थे वो 5 थे, फिर मैंने इंक्लूड किए 2 नेल एक्सटेंशन और। तो ये मैंने अभी नेल एक्सटेंशन इसमें बढ़ाया है, क्योंकि और भी डिमांड्स है, और भी नई चीजें आती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये बढ़ाती जाती हूँ, ठीक है। उसके बाद 30+ नेल आर्ट डिजाइनिंग प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज देती हूँ। मतलब इतने सारे प्रोडक्ट्स है, उसको यूज कैसे करना है, और उसको यूज करके कैसे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन क्रिएट करने हैं, हाउ दोज प्रोडक्ट हैज टू बी यूज एंड क्रिएट अ यूनिक डिजाइन, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन। फॉर दैट we give a 30+ knowledge, product knowledge, okay, that is the accessory products। उसके बाद में डिफरेंट टाइप के 50+ नेल आर्ट डिजाइनिंग जो है वो आपको मेरे ऑनलाइन क्लासेस में पूरा डेमोन्स्ट्रेशन विद द क्लियर वीडियो एंड ऑडियो आपको वो सेंड करती हूँ, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है मेरा सारा ऑनलाइन प्रोग्राम का है। उसके बाद आफ्टर केयर टेक्निक्स है, द नेल आर्ट पोर्टफोलियो क्रिएशन, सब स्टूडेंट्स को नेल आर्ट पोर्टफोलियो भी क्रिएट करवाती हूँ। आप लोगों को मैं नेल आर्ट पोर्टफोलियो दिखाऊंगी अभी। बिजनेस कार्ड एंड बिजनेस एंड प्रमोशन जो क्लासेस में होता है, बिजनेस को कैसे प्रमोट करना है ना। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, कैसे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करोगे। तो ये सारी चीजें जो है मैं अपने कोर्स में, ऑनलाइन कोर्स में ये मेरी है, जिसमें मैं सिखाती हूँ नेल आर्ट प्रोफाइल क्रिएशन। देन आपको ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको ई सर्टिफिकेट भी मिलता है। फिर इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो पूरी की पूरी आपको, जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स मिलती है, जो कि कभी भी आप किसी भी समय में अपने कन्वीनियंट टाइम में उसको सुन करके और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मतलब एक बार आपको समझ नहीं आया, फिर से रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, फिर से देख लो, फिर नहीं समझ आया, फिर से देख लो। क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग्स रहती है हमारी साल भर के लिए, इट्स काइंड ऑफ अ लाइफ टाइम। 1 साल के लिए आपको कोई रिकॉर्डिंग मिल रहा है तो दैट इज मोर देन इनफ। आप एक चीज को 10 बार देखोगे ना, तो आपको 10वें से 15, मतलब किसी को मान लो अगर जो बिगनर है ना,
और वो रिकॉर्डिंग देख रहा है, पहली बार में नहीं समझ में आया, चलो दूसरी बार में नहीं समझ में आया, तीसरी बार देखेगा, चौथी बार वही चीज देखता है ना, तो वो देखते देखते सीख जाता है। सो दिस इज हाउ आई हैव डिजाइन माई ऑनलाइन प्रोग्राम टू गिव यू बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ नेल इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है। अभी भी मेरा फर्स्ट बैच चल रहा है, मेरे कुछ स्टूडेंट भी इसमें ज्वाइन है, और वो धीरे धीरे सारी चीजें सीख रहे हैं, और उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको घर बैठे कुछ नहीं करना है, घर बैठे आपको एक ऐसी चीज सीखनी है जो जिससे आप महीने के 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए का महीने आराम से, जस्ट गिविंग अ सर्विस, नेल सर्विस यू कैन अर्न। आप चाहते हो घर में बैठ के किसी को सर्विस ना दो, प्रेस ऑन नेल का बिजनेस करो, तो वो भी आराम से कर सकते हो, क्योंकि नेल एक्सटेंशन में बहुत सारे टॉपिक है जो कि आपको घर बैठे बैठे आप कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो। जैसे वी हैव एक्सटेंशन, टेम्पररी एक्सटेंशन, वी हैव जेल एक्सटेंशन, we have acrylic extension, we have polygel, we have press-ons, we have नया जो आया है आपका जेल एक्सटेंशन। सो दीज आर ऑल लेटेस्ट ट्रेंडी जेल एक्सटेंशन, जिसमें आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और इस कोर्स का प्राइस एक्चुअली 15,000 है। ठीक है, अगर मैं इसकी ड्यूरेशन बढ़ाती हूँ, 1 मंथ का रखती हूँ, तो मैं इसको 15,000 में ही लेती हूँ क्लासेस को, क्योंकि ये आप अपने कन्वीनियंट टाइम पे देखोगे। और वीकली जो है, ओनली सैटरडे को मैं लाइव आके क्लासेस लेती हूँ। मैं अभी रेगुलर नहीं लेती, पहले रेगुलर लेती हूँ, पहले रेगुलर लेती थी, बट अभी क्या है, सैटरडे सैटरडे आकर के वो लाइव सेशंस लेती हूँ। वो है डाउट का, Q&A सेशंस का, बिकॉज सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जा रही है। तो आप दिन में देखो, सुबह में देखो, रात में देखो, किसी भी टाइम यू कैन वॉच इट, दिस वन। ओके, हेलो एंड मैम। ऑन सैटरडे वी हैव अ Q&A सेशन। मतलब एक सेशन जैसे अभी मैंने लिया ना, बिल्कुल वैसा ही एक दिन का वो पूरा सेशन रहता है, मतलब 1 से 2 घंटे का सेशन रहेगा। उसमें जो भी आपको डाउट है, वीडियो में आपने जो भी देखा समझ नहीं आया, उसको करके कैसे बताना है, या फिर से नया आर्ट दिखाना है, तो वो सैटरडे को हर सेशन में दिखाती हूँ। सो दिस इज हाउ आई हैव प्रोग्राम्ड माई नेल आर्ट कोर्स, which is a very reasonable now, and it is for the 2,999 now. ओके, अगर किसी को इंटरेस्टेड है, आप लेना चाहते हो, तो आप इसको ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही बहुत ही रीजनेबल बजट में मैं अपने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन स्टूडेंट को दे रही हूँ। मैं ऑफलाइन स्टूडेंट को नहीं देती हूँ ये वाला प्राइस में। ऑफलाइन स्टूडेंट का जो फीस है वो 30,000 है। ठीक है, एक्चुअल प्राइस है 60,000। ऑफलाइन वालों के लिए 30,000 है, और ऑनलाइन वालों के लिए 15,000 है। बट जो भी मेरे वर्कशॉप से इसको लेता है, मतलब जो भी वर्कशॉप में आने के बाद उसको परचेस करता है, उनको मैं ये ये वाले रेट पे दे रही हूँ। ठीक है, 2,999 में। तो जो भी इंटरेस्टेड है, वो मुझे, मैं एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी आप लोगों को, उस व्हाट्सएप नंबर में जो भी इंटरेस्टेड है, मुझे जीपे करके, आप स्क्रीनशॉट, जीपे का स्क्रीनशॉट खींच करके आप मुझे सेंड कर सकते हो, और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कोर्स का आपको एक्सेस इमीडिएटली मिल जाएगा, आप तुरंत तुरंत सारे वीडियो आराम से देख पाओगे। और जो भी नेल आर्ट से रिलेटेड है, वो हर क्लासेस, जो लाइव क्लासेस होती है, वो हर सैटरडे होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही बहुत ही अच्छा, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेल एक्सटेंशन। अभी आप लोग मेरा काम देखो, और देखो कि मैं किस तरह की सर्विस आप लोगों को देने वाली हूँ, मतलब किस तरह का नेल आर्ट टेक्निक्स और आइडियाज आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं कैमरा को घुमा लेती हूँ। सो यहीं पे, और ये रहा मेरा पेज। एक्चुअली ये अपग्रेड हो चुका है, जब मैंने फर्स्ट डे क्लास लिया था तब का ये फॉलोअर्स है। अभी जाके इस पेज में मेरे फॉलोअर्स आप देख सकते हो। इट्स विद इन अ 2 वीक्स पीपल हैव ट्रस्टेड मी एंड केम टू माय पेज। बहुत ही कम समय में, विद इन अ 2 वीक्स में मुझे 250 फॉलोअर्स हो चुके हैं इसमें, मतलब 250 अप्रोक्स हो चुके हैं। और ये मेरा पहला पेज है, सबसे पहला पेज है, जिसमें मेरे लाइक यू कैन सी हियर दैट आई एम इंटरनेशनल सर्टिफाइड मेकअप, हेयर एंड मेहंदी आर्टिस्ट। ओके, और I've been doing this service, I've been doing this, I'm into this business from more than 9+ years। मुझे 9 साल से ज्यादा हो चुके हैं। साउथ इंडिया में बहुत सारे चीजें कर चुकी हूँ मैं, मेकअप से रिलेटेड ब्राइड्स ले चुकी हूँ, एड फिल्म से मैं काम कर चुकी हूँ। ठीक है, बहुत सारे एड, टाटा ब्रांड का एड फिल्म कर चुकी हूँ मैं। तो बहुत सारी पुरानी पुरानी चीजें हैं। ठीक है, तो अभी 3 साल से नेल आर्ट के बिजनेस को थोड़ा बूस्ट करने में लगी पड़ी हुई हूँ। तो दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट सेपरेटेड ओनली फॉर दिस नेल आर्ट पीपल। जो भी मेरे नेल के स्टूडेंट है ना, उनको मैं यहाँ नर्चर नहीं कर पा रही थी, इसलिए आई हैव मूव टू दिस पेज एंड आई केम हियर। ओके,
so that I can give a live sessions, I can give real challenges, I can create a real challenges for my student. इसलिए मैंने ये पेज क्रिएट किया है। तो जो मुझे फॉलो करना चाहते हैं वहाँ फॉलो करके डेली अपडेट्स आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मी। अभी हम लोग नेल एक्सटेंशन देखेंगे, नेल ब्राइडल नेल आर्ट डिजाइन देखने वाले हैं। तो यहीं पे मैं सेशंस को आई मीन ये वाला जो शेयरिंग है इसको यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ प्रेजेंटेशन को। एंड देन नाउ आई विल गो टू द एक्सटेंशन एक्सप्लेनेशन, मतलब ब्राइडल नेल एक्सटेंशंस को हम कैसे बनाएंगे, डिजाइन कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं अपना कैमरा मूव कर रही हूँ बस। तो इस तरह से मैंने टिप्स वगैरह डिसाइड करके रख लिए हैं। तो ये एक स्मॉल हैंड का फिंगर्स नंबर है। तो इसमें बहुत सारे नंबर्स आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत सारे नंबर्स आते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 0 से लेकर के 0 से लेकर के आपको नंबर्स मिल जाते हैं इसमें 9 नंबर तक, है ना। 0 से यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो नंबर अगर विजिबल होगा तो मैं क्लियरली आप लोगों को दिखाऊंगी। इसमें विजिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इस पार्ट पे आपको नंबर लिखा हुआ मिलेगा। तो ये है नंबर 0, ठीक है। और जो सबसे छोटा होगा ना, सबसे छोटा वो नंबर 9 होगा। तो दिस इज हाउ फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे रहेंगे नंबर्स, ठीक है। तो ये मेरा ग्लैम का टिप है। तो टिप का जैसे प्राइस की कोई प्राइस मुझे पूछ रहा था तो मैं बता दूं, ये जो टिप्स है ये थोड़े कॉस्टली आते हैं। ये जैसे कि टिप में यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, एक मिनट में दिखाती हूँ। इज इट विजिबल? नहीं दिख रहा है। तो कैमरा एक्चुअली बहुत ही, हाँ ये देखो ये 1250 रुपए का है। तो दिस इज क्वाइट कॉस्टली क्योंकि ग्लैम का है। ग्लैम थोड़ा कॉस्टली होता है गर्ल्स, ठीक है। तो दिस विल बी बिट कॉस्टली टू यू। तो आप प्रेफर करो जो कि जो भी लाइक नो सस्ता वाला, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है आपको। तो जो भी सस्ता वाला मिले वो वाली टिप लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दिस इज अ वेरी दिस इज ऑल्सो कॉस्ट मी अराउंड 350 to 500 समथिंग। तो मैंने इसमें भी बहुत सारे नंबर्स रहते हैं, है ना। इसमें भी बहुत सारे नंबर्स रहते हैं, इस तरह के टिप रहते हैं इसमें। इसमें 1 से लेकर 0 से लेकर के आपको 9 नंबर तक के टिप मिलेंगे। तो इससे मैंने ये टिप सेलेक्ट किया है। तो देखो प्राइस अगर कम है तो क्वालिटी में आपको फर्क आएगा थोड़ा, इसलिए मैंने बोला ये प्रैक्टिस के लिए यूज करना, है ना। ग्लैम की क्वालिटी रहती है, इसका जो प्लास्टिक होता है, आई मीन इसका जो होता है वो हार्मफुल केमिकल से नहीं बना होता है। तो इन हैंड इट विल बी सेफ। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आज का जो नेल आर्ट डिसाइड किया है वो ओम्ब्रे नेल आर्ट विद द 3D 3D फ्लावर, वो डिजाइन का प्लान किया है। तो सबसे पहले हम लोग बेस रेडी कर लेंगे, ठीक है। इन अनदर 10 minutes can we use a 1 second, I'll just read the chat. Okay. ओके, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी, ओके। हैंड के ऊपर टिप लगा के बताना। देखो टिप लगा के मैं बताऊंगी, ओके। अभी वो मुझे उसको बुलाना पड़ेगा। देखो टिप लगाना इज वेरी इजी, इट्स नॉट लाइक दीज आर द टेम्पररी एक्सटेंशन टिप। पहले हम लोग डिजाइन देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक हाथ, बस एक फिंगर ही मैंने एक्सप्रेस मैनिक्योर किया है, तो उस पे ही मैं आपको टिप लगा के दिखाऊंगी, ठीक है। क्योंकि इट्स टेक्स टाइम, है ना। तो डिजाइन सीखना इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि डिजाइन की ही मैंने बात की थी। वर्कशॉप इज ऑल अबाउट द डिजाइनिंग, इट्स नॉट अबाउट द एप्लीकेशन। तो एक ही हाथ में अप्लाई करके दिखाऊंगी। उसके बाद मैं वीडियो मेरे पेज में शेयर कर दूंगी कि पूरे हाथ में ये कैसा दिखता है। आई विल क्रिएट अ वीडियो एंड आई अपलोड, ओके, सो यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। यहाँ पे उतना क्लियरली विजिबल नहीं होता है, तो मैं डिजाइन ही बनाना आप लोगों को यहाँ पे सिखाती हूँ, उस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। इन अनदर 10 minutes योर रिकॉर्डिंग विल गेट क्लोज।
ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है सेशन क्लोज हो जाएगा तो आपको फिर से 5 मिनट में जुड़ जाना है ताकि आप ये इसको पूरी तरीके से देख सको। अंडरस्टूड? यस, आप लोग ब्रेक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सिस्टम रिकॉर्ड लेता है। ओके, अभी आप समझे? मैं 3-4 बार चिल्ला चिल्ला के बोल चुकी। सिस्टम इज रिकॉर्डिंग, सिस्टम इज रिकॉर्डिंग, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ब्रेक। है ना, क्योंकि आप लोगों को रिकॉर्डिंग चाहिए ना, नहीं चाहिए तो बोलो, मैं तुरंत ज्वाइन हो जाती हूँ। अगर नहीं दूं ना सब मार कर देंगे, रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग चाहिए। तो रिकॉर्डिंग के लिए आई एम टेकिंग टाइम। अंडरस्टूड? क्योंकि सिस्टम मेरे अकॉर्डिंग तो चलेगा नहीं। और आप लोग में से कोई अगर जूम यूज करता है तो आप लोगों को पता ही होगा, तो जूम इज वेरी कॉस्टली। आपको महीने के 20,000 रुपए पे करना पड़ता है ना, टू टेक अ लाइव क्लास फॉर अनलिमिटेड टाइम, फॉर अनलिमिटेड आवर्स। तो फ्री सेशंस के लिए मैं इतना क्यों खर्च करूं, आप ही बताइए। लॉजिक है ना मेरे बात में। फ्री सेशन के लिए हाउ, इफ पीपल आर रेडी टू पे, आई कैन अंडरस्टैंड, आई ऑल्सो पे टू जूम, है ना, फॉर कंटिन्यूअसली क्लासेस। बट पीपल आर नॉट रेडी टू पे, देन व्हाई आई विल स्पेंड द मनी फ्रॉम माई पॉकेट। मैं अपने जेब से पैसे खर्च करके एक्सटेंशन क्यों कराऊं जूम का, जब लोग मुझे देने को रेडी ही नहीं। अंडरस्टूड? बात में लॉजिक समझ में आ रही है? तो अभी देखो, ये नेल आर्ट के लिए जो भी प्रोडक्ट मैं ले रही हूँ, ये 2 कलर ले रही हूँ। ठीक है, ये 2 कलर है जो कि है ऑफ न्यूड कलर, आई मीन न्यूड कलर इन पिंक, एंड दिस इज अ ऑफ वाइट कलर। सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन से ओम्ब्रे तैयार होने वाला है। ओके, एंड देन वी नीड अ प्रो रेंज ग्लैम का व्हाइट पाउडर टू क्रिएट अ एक्रिलिक फ्लावर। ठीक है, एंड देन वी नीड अ जेल, दिस इज अ जेल, 1 step clear gel. Okay, and we need a rhinestones. This is a jewelry which I'm taking to create a stone effect. Okay, so stone effect create करने के लिए मैं ये jewelries ले रही हूँ। और उसके बाद आपको चाहिए टॉप कोट सील करने के लिए, एंड बेस कोट फॉर द बेस। तो सबसे पहले मैं इसको सबको बेस कोट कर देती हूँ। ठीक है, सो मैंने बेस कोट लिया। एक्सक्यूज मी गर्ल्स, मैं कंटिन्यूअसली बात करती हूँ, आई मीन ऑनलाइन क्लासेस में व्हेन वी टेक द क्लासेस ऑनलाइन वी टॉक अ लॉट। और मेरी बहुत सारे रिकॉर्डिंग सेशंस हैं, मतलब बहुत सारी चीजों की रिकॉर्डिंग करती हूँ, दैट्स व्हाई मेरा गला थोड़ा सा इट्स डिस्टर्ब। सो ये मैंने अप्लाई कर दिया बेस कोट, और अभी इसको मुझे क्योर करवाना है फॉर द 60 सेकेंड। गॉट इट? सो आई एम जस्ट, देखो ये मेरा लैम्प है, आई जस्ट शो माय लैम्प, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड वेनेलिसा। ओके, आई एम जस्ट क्योरिंग फॉर द 60 सेकेंड। यहाँ पे जो मैं 60 सेकेंड का क्योर कर रही हूँ, यहाँ पे वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स। थोड़ा ऊपर ले जाके मैं नंबर भी दिखा देती हूँ। सो दीज आर द नंबर्स, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 60 सेकेंड है, यहाँ पे 30 सेकेंड है, वी हैव अ 10 सेकेंड है। ओके, सो मैंने 60 सेकेंड के लिए अपना बेस कोट क्योर करवाया है। क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लास अगर ऑफ हो जाए तो फिर से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, अगर मैं एक्सटेंशन पहले दिखाती हूँ ना तो पीपल वोंट वेट फॉर द थ्योरी, बिकॉज पता नहीं, आई डोंट नो क्यों लोगों को थ्योरी समझने में इंटरेस्ट नहीं है, जबकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, आप साइंस नहीं समझोगे और बिना साइंस को समझे ही क्लास करने की कोशिश करोगे ना, तो दैट्स वोंट वर्थ, है ना, वो वर्थ नहीं होता है सीखना, वो सीखना सीखना नहीं होता है जिसमें आप पूरी नॉलेज ना लो। सो ये हो गया बेस कोड का एप्लीकेशन। अब इसके ऊपर मैं नेल पॉलिश अप्लाई करूंगी। तो मैंने यहाँ पे
एक वो जो उम्र के लिए ब्रश जो होती है वो मैं दिखा दूं आप लोगों को। इसकी उम्र ब्रश, 1 सेकेंड। या सो दिस इज माय उम्र ब्रश। सॉरी, ब्रश थोड़ी सी गंदी है क्योंकि मैं इससे बहुत काम करती हूँ और हर दिन का काम रहता है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ब्रश फ्रॉम ग्लैम। ये एक ब्रश 1000 रुपीज का आता है गर्ल्स, ठीक है। बट आपको बिगनिंग में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इतना। आप किट ले सकते हो, ब्रश की किट ले सकते हो, बट आपको एक्रेलिक और इसी तरह की डिजाइनिंग ब्रशेस होती है ना, वो थोड़ी महंगी आती है। तो आप दूसरे ब्रांड से ले सकते हो। मैं अभी बिगनिंग में रिकमेंड नहीं करती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि वो महंगी ब्रश ले। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टिप पे पिंक कलर लगा लेना है। सो ये मैंने टिप पे जेल पॉलिश अप्लाई करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो मैंने हाफ लगाया है अभी। और उसके बाद एक ऑफ वाइट कलर है, इसको मैं हाफ पोर्शन पे लगा रही हूँ। ओके, गॉट इट। अभी ये ब्रश की मदद से इन दो कलर को मर्ज करूंगी मैं। इस तरह से आपको मर्ज कर देना है। अभी यहाँ पे क्या है, जब मर्ज हो जाए आपका कलर, तो आपको, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एसीटोन ले लेती हूँ। और एसीटोन यहाँ पे मेरा एक्चुअली ब्रश थोड़ा सा हार्ड हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे एसीटोन लेके ब्रश को थोड़ा सा, ब्रश के ब्रिसल्स को थोड़ा स्मूथ कर ले रही हूँ। ठीक है, अब मैं कंटिन्यूअसली ब्रश यूज करती हूँ, जिसकी वजह से ब्रश थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो जब भी आपके ब्रश में प्रोडक्ट रह जाए ना, तो इस तरह से आप ब्रश को क्लीन कर लोगे। अभी मैंने ये एसीटोन की मदद से क्लीन किया। अब ये मेरे लिए इजी होगा टू ब्लेंड आउट। इस तरह से मैं ब्रश को घुमा रही हूँ और कलर को ब्लेंड कर रही हूँ। तो ये देखो, मेरा पिंक टू व्हाइट अच्छे से ब्लेंड हो गया। अभी मैं इसे क्योर करा दूंगी। सेम चीजें हमें बाकी के टिप में भी करनी है। तो मैं फट से थोड़ी जल्दी 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 इन टिप्स पे सारा कलर अप्लाई कर देती हूँ। सो रैंडमली कलर, क्योंकि इस पे दूसरा कोड भी जाता है, तो मैं रैंडमली अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, या 45 मिनट्स के 4 दिन के सेशंस हो जाते हैं। तो मैं इतना लंबा नहीं लेना चाहती थी, मैं एक दिन में खत्म करना चाहती थी। दैट्स वाई ये सारी चीजें बताने में वक्त लगती है। ठीक है, तो एक्सटेंशंस को देखो, अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है क्या? क्लियर है? हाँ मैम, शो हो रहा है। दिख रहा है सबको? हाँ मैम। ओके, जिनको नहीं दिख रहा है रीजॉइन हो जाइए प्लीज। देखो, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, बाकी नेल्स में भी मैंने, आप देख रहे हो, लाइट टू डार्क टू लाइट का मैंने यहाँ पे बेस रेडी कर लिया है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ ओम्ब्रे। अभी अभी यहाँ पे मैं इनको इनको क्योर करा देती हूँ। आपको एक ही नेल जो मैं अभी यहाँ पे रेडी कर रही थी उस पे ही सिखाते हैं। अभी ये जो पहला आप लोग देख के गए थे ना, ये वही नेल है जिसमें मैं ओम्ब्रे कर रही थी। बाकी जब ये ब्रेक हुआ था उसी समय पे मैंने बाकी नेल्स को भी रेडी कर लिया। ओके, बिकॉज अभी जो सेशन है ये इस बार में खत्म हो जाए और आप लोग सारा सीख लो, इसलिए मैंने वो फास्ट करने के लिए कर दिया। देखो मैं क्या करती हूँ,
मैं क्लासेस में रिकॉर्डिंग ही देती हूँ, क्योंकि जब हम लोग लाइव जाते हैं ना, लाइव में टाइम लेता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है वो। ओके, सो थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा, कुछ सीखना है तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, राइट। अच्छी चीजें इतनी जल्दी तो आप सीख नहीं सकते ना। वो यूट्यूब वाला होता है या फिर शॉर्ट्स और रील्स में ही होता है, 1 मिनट में सब सीख जाओ, बट इतना आसान नहीं होता है वो। रिकॉर्डिंग में भी पता है, आप एक एक आर्ट को रिकॉर्ड करने में ही आराम से 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो इट्स नॉट इजी। जो आप 1 सेकंड में देख रहे हो ना, इट्स नॉट इजी। वो तो वो लोग बहुत फास्ट ट्रैक में रील चलाते हैं, तो दिखता है कि ये बहुत इजी है और बहुत जल्दी बन जाता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं। रियलिटी इज समथिंग एल्स, है ना। और कितनों को इसकी रियलिटी पता है, मतलब कितने लोग जानते हैं ये रियलिटी को। ये देखो, अभी मैंने इस पे और दूसरा कोट लगाया। ठीक है, पहला कोट लगाया था, उसके बाद एक दूसरा कोट लगाया। ये नीचे ऑफ वाइट का और ऊपर पिंक का। अभी इनको ब्रश की मदद से मर्ज करना है। हल्के हाथों से ब्रश की मदद से मर्ज करेंगे। आपको जरूरत पड़ी तो सेकंड कोट भी मर्जिंग करेंगे, मतलब दूसरी कोट लगा के तीसरी कोट भी लगाएंगे, बट यहाँ पे देखो, मुझे जो है, जो लुक चाहिए वो दूसरे में अचीव हो जा रहा है। आप चाहते हैं तो 3 कोट लगा के भी इसको मर्जिंग करवा सकते हैं। तो मेरे तीनों जो है नेल्स प्रॉपरली आ चुके हैं ओम्ब्रे के इफेक्ट में। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा जब गया था तो थोड़ा उसमें वो क्योर हो रहा था। मैंने निकाल के फिर से ब्रश चलाया तो थोड़ा वो बिगड़ सा गया। इट्स ओके, फाइन। बट आप जब लैम्प में जाते हो ना, इमीडिएटली वो ड्राई होना शुरू कर देता है, अगर आप लैम्प को स्टार्ट नहीं भी किए हैं तो भी, है ना। और कभी भी आपके जो प्रोडक्ट्स है, जो नेल पॉलिश है, नेल कोई भी प्रोडक्ट है, आपको लैम्प के सामने नहीं रखने हैं। जैसे ही आप रखोगे ना, वो सारा ये पूरा बॉटल सूख सकता है। ये बॉटल देख रहे हो, अगर मैंने गलती से ये नेल के जितने भी सारे बॉटल्स है ना, ये यहाँ रख दिए लैम्प के पास, तो ये क्या होगा, ये पूरे ड्राई हो जाएंगे, है ना। बिकॉज दिस लैम्प इज डिजाइन टू क्योर द जेल पॉलिशेस। तो वो कहीं भी रखा है, किसी भी सूरत में रखा है, वो ड्राई हो जाएगा। सो डू नॉट डू दिस मिस्टेक, अदरवाइज आपके 500 रुपए गए पानी में। क्योंकि एक नेल पॉलिश जो है, अच्छे ब्रांड की ले लो, क्योंकि मेरी तो ग्लैम की है, मोस्टली आई यूज अ ग्लैम प्रोडक्ट। तो जो ग्लैम की जो प्रोडक्ट है ना, एक नेल पॉलिश आपको 1000 रुपीज से लेके 2000 रुपीज का आता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस नेल पॉलिशेस। शिल्स के आपको 500 तक के आ जाएंगे, और बेसिक रेंज के प्रोडक्ट है वो 200 से लेकर 150 से लेकर के 300 तक के रेंज में आपको नेल पॉलिशेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया सारे टिप पे पॉलिश। ठीक है, तो इसको थोड़ा अरेंज करके रख लेती हूँ। अब एक एक पे मैं आपको आर्ट दिखाना शुरू करूंगी। तो ये हो गया मेरा कलर एप्लीकेशन इन द टिप्स। अभी यहाँ पे मैं इस वाले नेल पे एक्रेलिक बनाऊंगी, तो इसको कर देती हूँ साइड। और इन दोनों पे मैं एक पे करूंगी ओम्ब्रे इफेक्ट। ओम्ब्रे पे थोड़ा सा क्रोम एप्लीकेशन इफेक्ट करेंगे हम लोग। ओके, तो इसको रख देती हूँ। ये तीनों एलिमेंट जो है डिजाइनिंग एलिमेंट है, और बाकी जो रहेंगे वो प्लेन रहेंगे, तो इसको मैं साइड रख देती हूँ। तो इन तीनों पे आपको कुछ नया आर्ट करके दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टोन आर्ट पे वर्क करते हैं। या तो चाहे आप स्टोन रखना चाहते हैं, पूरा स्टोन रख सकते हैं, या फिर क्रोम से आर्ट करना चाहते हो, क्रोम आर्ट भी कर सकते हो। टोटली अप टू यू। ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ, इन दोनों पे, ये बड़ा है, तो ये वाले पे एक्रेलिक फ्लावर करती हूँ, इन दोनों पे स्टोन कर देती हूँ, और बाकी इन दोनों में क्रोम कर देती हूँ, तो वो और भी प्रिटी लगेगा। ठीक है, चलो। तो ये मैंने ले लिया स्टोन, छोटे वाले स्टोन ले लिए। अब इसके ऊपर मैं कर दूंगी जेल पॉलिश अप्लाई। सॉरी, ये टॉप कोट है जेल का, तो इसको कर देती हूँ मैं अप्लाई, एंड देन स्टोन्स इसके ऊपर चिपका देते हैं। कौन सा बड़ा है? हाँ, ये बड़ा है। तो अभी मैं जेल पॉलिश अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद
ब्रश की मदद से हो या फिर किसी भी चीज की मदद से हो, आपको इसको स्टोन को चिपकाना है। क्योंकि ये छोटे से है तो मैं इसका एक टूल आता है, वो टूल अभी यूज नहीं कर रही हूँ। अभी मैं सिर्फ ब्रश की मदद से इनको चिपकाऊंगी। ठीक है, तो मेरे पास अभी ये पतला सा ब्रश है, तो इसको मैं रेंडमली इन स्टोन्स को रख रही हूँ। तो आपको स्टोन्स जहां भी रखने हैं आप रेंडमली रख सकते हो। अच्छा ठीक है, इनका जो वीडियोस है, आपको पूरे हाथ में अप्लाई करा हुआ इसे देखना है ना। मैं इसकी एक वीडियो रिकॉर्ड करके, हाथ में इसे अप्लाई करके पूरी वीडियो एक रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, मतलब मेरे इंस्टाग्राम पेज में वो अपलोड हो जाएगा आज शाम को। तो आप लोग देख लेना जब भी आप लोगों को टाइम मिले। प्लस रिकॉर्डिंग पे अभी मैं काम करने वाली, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो है इसे सेव करना है, देन इसे अपलोड करना है, देन लिंक शेयर करना है। तो ग्रुप ग्रुप में आपको लिंक शेयर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्टोन एप्लीकेशन। नजदीक से आप जब फोटो में देखोगे तो ये और भी क्लियर होगा, बिकॉज ऑफ द लाइट यू आर नॉट एबल टू सी दी क्लियर कलर। ओके, तो अभी मैं इसे क्योर करा देती हूँ। ये मेरे हो गए दो नेल पे आर्ट। इस पे मैं एक्रेलिक दिखाने वाली हूँ और इन दोनों पे क्रोम दिखाने वाली हूँ। तो एक मिनट मैं ले आती हूँ, जस्ट अ सेकेंड गर्ल। तो आपको जैसा मन है आप वैसा डिजाइन, अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज है तो आप डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है ही नहीं तो आप कुछ भी कर लो, नहीं कर सकते हो कुछ भी डिजाइन। तो यहाँ पे मैं एक क्रोम पाउडर है, इसको बोलते हैं यूनिकॉर्न क्रोम। ओके, सो ये स्टाइलिंग पाउडर्स है। ठीक है, स्टाइलिंग प्रोडक्ट है, तो इसको मैं यूज कर रही हूँ। इसको अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए एक एप्लीकेटर। ये एक एप्लीकेटर है। ठीक है, अफोर्डेबल ब्रांड बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे। देखो सब प्रोडक्ट के प्राइस मेरे पास ना बहुत अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट है। सस्ते वाले भी हैं, महंगे वाले हैं। महंगे वाले तो आप देखो, ग्लैम और सिल्स महंगे हैं, बट क्वालिटी भी अच्छी है उनकी। ठीक है, अगर आप क्लाइंट को सस्ता वाला लगाओगे ना, तो मैं पहले बता दूं वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। प्लस अगर वो रेगुलर कस्टमर है तो उनके साथ चीटिंग करना इट्स नॉट वर्थी, राइट। उनको अच्छा दो, प्रैक्टिस करने के लिए सस्ते वाले यूज करो, है ना। उनको सर्विस अच्छी देनी चाहिए आपको। क्योंकि मैं तो क्लाइंट उतना अब लेती नहीं हूँ, पहले लेती थी बट अब नहीं लेती हूँ। क्योंकि अभी नाउ आई एम फोकसिंग ऑन मोर ऑन टू ट्रेनिंग। तो मैं ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करती हूँ, इसलिए मैं अभी क्लाइंट पे उतना काम नहीं करती। बट आपको प्रोडक्ट क्लाइंट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आप लोग को अच्छा लगे तो ले लो, नहीं लगे तो ठीक है, सस्ती वाली से काम चला लो, है ना। बट आपके क्लाइंट लॉन्ग रन तक नहीं रहेंगे, क्योंकि वो भी समझदार है। देखो वो भी मार्केट रिसर्च करते हैं, है ना। दे ऑल्सो डू द मार्केट रिसर्च कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट चल रही है, क्या नहीं चल रही है। तो अभी देखो, इसको क्रोम करने से पहले मैं थोड़ा सा और क्योर करा लेती हूँ, बिकॉज 30 सेकेंड के लिए क्योर कराती हूँ। ये कुछ कुछ ब्रांड जो है ना, दैट टेक्स टाइम टू गेट क्योर। तो देखो ये ड्राई होके आ गया, है ना। इट्स गेट क्योर्ड फॉर द 60 सेकेंड। अच्छा, एक मिनट, मुझे कुछ भी नहीं आता उसके लिए, मतलब आई डेंट गेट। देखो मैं जब क्लास मेरे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं ना, तो उनको मैं सप्लायर डीलर सबका नंबर दे देती हूँ। जो कॉस्टली प्रोडक्ट भी ब्रांड सप्लाई करते हैं और सस्ते वाले भी ब्रांड का सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो वी हैव अ डीलर्स। तो मैं यहाँ पे नहीं दे सकती क्योंकि हमारा खुद का नहीं है। जो भी है सप्लायर्स है, उनके नंबर्स मैं शेयर करती हूँ टू माय स्टूडेंट्स, सो दैट दिल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट और सस्ते में कुछ अच्छा मिल जाए, इसलिए। तो आप लोग अब रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अभी देखो ये ड्राई हो गया है। अभी यहाँ पे मैं यूनिकॉर्न क्रोम अप्लाई कर रही हूँ।
तो इस तरह से आपको यूनिकॉर्न क्रोम को इस पे अप्लाई कर देना है। तो मैंने नीचे लगाया, नीचे लगाने के बाद इसको हल्के से हाथ से बस इसे रगड़ देना है। ओके, रब दिस प्रोडक्ट। तो इसका जो शाइन है वो और भी बढ़ जाएगा और इसका यूनिकॉर्न इफेक्ट आएगा। आप लोगों को पता चल रहा है, थोड़ा सा पिंकिश, थोड़ा ब्लूइश, थोड़ा ग्रीनिश। तो दिस इज हाउ। फिर इसको टॉप कोट लगाएंगे और क्योर करा देंगे। क्रोम को जब तक आप टॉप कोट से सील नहीं करोगे वो आपके नेल पे स्टे नहीं करेगा। तो you have to apply a chrome, after that you have to apply a top coat and seal the art। ठीक है, यही प्रोसेस है। आपको किसी भी आर्ट को टॉप कोट से सील करवानी ही पड़ेगी। देखो, जो भी बिगनर है, क्लासेस को अच्छे से समझना चाहते हैं, वो कोर्स ज्वाइन कर लो। ठीक है, क्योंकि आपको लॉस तो हो नहीं रहा है। 3,000 रुपए लोग ऐसे ही खर्च कर देते हैं खाने पीने में या फिर बाहर घूमने में। तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन अ गुड नॉलेजेबल थिंग। ऐसी चीज पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करते जहां पे आपको नॉलेज मिल रही हो और उस नॉलेज से आप अपना करियर बना सकते हो, जिसमें महीने के 10,000 से लेके 1 लाख तक आराम से आप महीने का कमा लोगे। ठीक है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अर्निंग। ओके, दिस इज माई ब्रेड एंड बटर। तो मैं भी कमाती हूँ, इसी से कमाती हूँ और लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि वो भी घर बैठ के कमा सकते हैं। क्योंकि मैं बताऊं आपको मेरे बारे में, तो आई एम बाय प्रोफेशन आई वाज इंजीनियर। ठीक है, मैं एक इंजीनियर थी और मैंने बहुत ही खुशी खुशी अपने प्रोफेशन को छोड़ा, क्योंकि मुझसे घर परिवार और अपना प्रोफेशन मैनेज नहीं हो रहा था, है ना। आई वॉज नॉट वेल। 9 to 5 जॉब या फिर ग्रेवियर्ड शिफ्ट बोलो, नाइट शिफ्ट बोलो, आप नहीं कर पाते हो। 10 से 12 घंटे का जॉब करके फैमिली संभालना, इट्स नॉट इजी, राइट, फॉर स्पेशली फॉर द गर्ल्स। तो मैंने एक ऐसा प्रोफेशन चुना जिसमें मैं अपना ही कंफर्टेबल टाइम पे मैं काम करूं, मतलब मुझे जब मन है तब मैं काम करूं। जैसे कि अभी मैं फ्री हूँ, मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, है ना। मैं फ्री रहती हूँ, मैं क्लास लेती हूँ, जब मुझे खाना होता है खाती हूँ, जब मुझे पढ़ाना होता है पढ़ाती हूँ। अपने कंफर्टेबल टाइम में मैं आराम करती हूँ और मुझे जब काम नहीं करना होता था मैं नहीं काम करती, है ना। तो अपनी मर्जी की लाइफ जीना चाहती थी मैं, इसलिए मैंने वो जॉब को क्विट कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको इस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी तो मिल जाती है। सो द पीपल हु आर यू नो जो कहीं ना कहीं जॉब करते थे बट किसी कारण से, फैमिली रीजन, इट कुड बी एनीथिंग। मैं मेरी बेटी की वजह से मैंने क्विट किया। व्हेन आई कंसीव विद माय फर्स्ट डॉटर, फर्स्ट चाइल्ड, आई वाज नॉट एबल टू गो टू जॉब, है ना। जॉब जाने की लायक नहीं थी मैं, उतनी हालत मेरी नहीं थी अच्छी, जिसकी वजह से मुझे क्विट करना पड़ा। बट बिकॉज आई वाज वर्किंग, मेरे अंदर का काम करने का जो इच्छा था ना वो खत्म नहीं हो रहा था। मुझे काम तो करना ही था। इतनी पढ़ाई करने के बाद घर बैठने का कोई मतलब नहीं होता, राइट। बट काम कुछ ऐसा करना चाहती थी मैं जिसमें अपनी मर्जी का टाइम टेबल हो, कोई बॉस ना हो और अपने परिवार को भी चलाना था, देखना था, है ना। आई हैव टू लुक आफ्टर माय किड्स आल्सो। तो ये बहुत ही अच्छा समय है, मतलब मैं अब बहुत ही अच्छा टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड करती हूँ, बहुत ही अच्छा टाइम उन लोगों के साथ बिताती हूँ और अपना काम भी करती हूँ, राइट। और क्या चाहिए लाइफ में। सो दैट्स व्हाई आई एम इनटू दिस फील्ड और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आर्ट से मैं बहुत पहले से जुड़ी हूँ, बचपन से मुझे आर्ट करना अच्छा लगता था। दैट्स व्हाई समथिंग न्यू, है ना। पेंटर भी बन सकते थे बट यू नो समथिंग मोर इफेक्टिव, मोर प्रोफेशनल, रिलेटेड टू द ब्यूटी। तो इसमें भी आर्ट है ना। साथ में अपनी ब्यूटी भी हो जा रही है। आई मीन टू ब्यूटी सर्विस एज वेल। सो दो काम हो जा रहे हैं। मेरा आर्ट का पैशन भी मेंटेन है और मेरी ब्यूटी सर्विसेज भी मेंटेन है और साथ में मैं जो ट्रेंडी प्रोफेशन है ना उस पे भी काम कर। तो यू हैव टू डू द मार्केट रिसर्च, आपको एक मार्केट रिसर्च करना है इन चीजों में। अभी देखो, ये मेरा 3D एक्रिलिक फ्लावर का मैं बेस रेडी कर रही हूँ। आपको इस तरह से स्टोन ले लेने हैं। ओके, सो मैंने 3 एंगल में इस डायरेक्शन में स्टोन ले लिया है और इसे मैं रख दे रही हूँ फॉर द क्योर फॉर द 60 सेकेंड।
अभी इस पे जो मैंने जेल अप्लाई किया था वो 1 स्टेप क्लियर जेल था, ठीक है। इसका बेस जो होता है थोड़ा थिक होता है। अब मैं, मेरा बेस जब रेडी हो जाएगा तब मैं एक्रेलिक फ्लावर पे काम करूंगी। उसके लिए देखो, ये वाला है डिपेंड टूल। मुझे एक्रेलिक की एक ब्रश लेनी है, मैं ब्रश दिखा देती हूँ। मैं सब, क्योंकि मैं छोटे फ्लावर पे काम कर रही हूँ, मैं एक छोटा सा ब्रश लेती हूँ। ये रहा मेरा ब्रश, ये भी एक ब्रश है, ठीक है। आपके फ्लावर के साइज के हिसाब से आप ब्रश लोगे। डिपेंड टूल है, ब्रश है। आपको चाहिए प्रोडक्ट मोनोमर। ये मेरा मोनोमर है, ये ऑर्डिनरी बेसिक ब्रांड का है, ठीक है। ये आपको 500 रुपए के अंदर मिल जाएगा। और ये जो है, मैं एक्रेलिक पाउडर व्हाइट कलर का यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो सस्ता वाला एक्रेलिक है ना, उसमें व्हाइट कलर मुझे नहीं भेजते हैं लोग, पता नहीं क्यों। मैं जब भी मांगती हूँ व्हाइट कलर, उनके पास होता नहीं होगा व्हाइट, तो व्हाइट भेजते नहीं। तो अभी जो रिक्वायरमेंट है मेरी व्हाइट कलर की है। मेरे पास ऑर्डिनरी ब्रांड में ट्रांसपेरेंट कलर है। अगर पास में है तो मैं दिखा देती हूँ। नहीं, नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा बेस रेडी हो गया है, अभी मैं इस पे करूंगी काम। तो ये टॉप कोट के एप्लीकेशन के बाद, ये मेरा, देखो ये सारे रेडी हो रहे हैं। हम भी आई थिंक रेडी हो चुका है, या हम भी रेडी हो चुका है। इनको मैं ऐसे ही डाल के रखती हूँ। अभी हम लोग इस पे काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल लेती हूँ एक्रेलिक पाउडर। सो ये मेरा है एक्रेलिक पाउडर। ये है मोनोमर, इस मोनोमर को लेती हूँ मैं। मोनोमर लिया मैंने। तो आपको एक्रिलिक फ्लावर करने के लिए एक्रिलिक का पाउडर और मोनोमर की जरूरत है। इन दोनों को मैं यहाँ रखती हूँ साइड पे। और जो भी मैं अभी आप एक टिश्यू पेपर रख लो, ठीक है, क्योंकि अभी जो मोनोमर है वो लिक्विड आपको एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी में चाहिए। मतलब जितना जरूरत है उतना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे एक रख लिया। हाँ, अभी यहाँ पे मैं इस ब्रश को थोड़ा डिप कर लेती हूँ। अभी ब्रश ना लास्ट टाइम यूज हुआ था, इसलिए बहुत हार्ड है, तो उसको थोड़ा सा प्रेशर देके ब्रश को थोड़ा हल्का डाइल्यूट कर लेती हूँ। ब्रश में जितने सारे प्रोडक्ट है ना, वो अपने आप मोनोमर में जाते साथ निकल जाते हैं, तो वो निकाल लो पहले। ब्रश रेडी, देन यू आर ऑल्सो रेडी फॉर द आर्ट नाउ। अभी अभी क्या है, टॉप कोट नहीं लगाया था आपने। किस वाले पे टॉप कोट नहीं लगाया था? ये जो स्टोन वाले पे था। स्टोन वाले पे मैंने पहले ही टॉप कोट लगा लिया था, ठीक है। ये वाले पे, इस वाले पे टॉप कोट नहीं लगाया था, लिटिल फिंगर पे। ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसमें लगा देती हूँ और बाद में क्योर करती हूँ, साथ में क्योर करती हूँ इसके, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपको, जिसमें आप एक्रिलिक कर रहे हो ना, तो ये ऑप्शनल होता है। आप चाहे तो इसको टॉप कोट कर सकते हो अगर आपको ग्लॉसी फिनिश चाहिए। आपका, अगर आपको ग्लॉसी फिनिश नहीं चाहिए तो टॉप कोट की जरूरत नहीं, ठीक है। अभी मैंने ये ब्रश को डिप किया इसमें, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाले, एक्स्ट्रा मोनोमर निकाला। और पहले देखो, टिप को 45 डिग्री एंगल में आप उस पे रखोगे। फिर देखोगे कि आपका बिट जो है वो कैसा आया है। अगर वो परफेक्टली आया है तो गुड, आप यू आर गुड टू गो, ठीक है। वो काम करने लायक है, वो पहले देख के आपको समझना है। अगर वो लायक है तो उसके बाद आप प्रोडक्ट को लोगे। देखो ये मैंने बहुत सुंदर सा एक फ्लावर क्रिएट कर दिया है ना। फ्लावर के पेटल क्रिएट कर दिए, दिख रहा है सबको? बस एक दिखाने के लिए मैंने वो उठा करके रखा है ना। उसको सूखने देते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से आपको परफेक्टली एक बैलेंस प्रोडक्ट लेने हैं मोनोमर ब्रश पे। फिर प्रोडक्ट को उठाना है अपने ब्रश से विद द 45 डिग्री एंगल ऑफ ब्रश। अभी प्रोडक्ट को रख दो,
ठीक है, ब्रश से मोनोमर हटा लेंगे एक्स्ट्रा जो भी लगा है, एंड देन धीरे 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 हम लोग ब्रश की मदद से शेप देना शुरू करेंगे। दिख रहा है, क्लियर है सबको? फिर से सेम टेक्निक, सेम होल्डिंग। देखो इस तरह से आपको चेक करना है, आपका बिड अगर सही आया तो आप उसको अप्लाई कर दो टिप पे, अगर नहीं आया तो फिर से एक बिड लेके सेम साइज का बिड लेना है। देखो सेम साइज का है ना, मैं इधर रखूंगी इसे। अभी यहाँ पे क्या है, मेरा मोनोमर ज्यादा है तो वो रखा नहीं रहा है। धीरे से रखेंगे, मोनोमर को डिप करके ब्रश को क्लीन कर देंगे, एंड धीरे धीरे ब्रश की मदद से उसे दबाना शुरू करेंगे। 10 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये वर्कशॉप। तो अभी हम लोग दोबारा नहीं जुड़ेंगे, बस यहीं पे आपका क्लास खत्म हो रहा है। ओके, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप लोग का ग्रुप में ही आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगी, है ना। तो रिकॉर्डिंग देख के आप फिर से समझ सकते हो। जिनको क्लास ज्वाइन करना है आप लोगों को मैं क्लासेस से रिलेटेड जो डिटेल है वो शेयर कर दूंगी। जिनको भी ज्वाइन करना है वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे पर्सनली। व्हाट्सएप करके आप लोग पेमेंट करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा पेड ग्रुप होता है ना। उसमें हमारे पेड मेंबर्स हैं जो क्लास ज्वाइन करते हैं, तो उस ग्रुप में आपको मैं ज्वाइन कर दूंगी और आप अटेंड कर सकते हो क्लास। आपको रिकॉर्डिंग्स मिलना शुरू हो जाएंगी, आपको प्रोडक्ट नॉलेज डिटेल सभी चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी वंस यू ज्वाइन। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइनिंग अभी चल रही है ना। देखो अभी दूसरे वाले पे मैं काम कर रही हूँ। इस तरह से आप फूल की जो पंखुड़ियां होती है, द पेटल्स, दैट हैज टू बी सेटल्ड। ओके, आपको एक ही साइज का बिड लेना है, एक ही साइज के बिड में काम करना है, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, आप लोग अगर पहले से ही हो आर्टिस्ट, पहले से करते हो, तो ये टेक्निक अपना के और ये वाली क्रिएट करके मुझे सेंड कर सकते हो और मुझे टैग कर सकते हो। ठीक है, अभी जो क्लास चल रही है अगर आप चाहते हो कि उसको भी आप सेशन को रिकॉर्ड करो, आई मीन स्क्रीनशॉट ले करके इसको भी मुझे सेंड कर सकते हो, है ना, टैग कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। देखो बिट जो उठा रही हूँ मैं, देखो कितना क्लियरली हो रहा है, राइट। एक मिनट रुको, इसको मैंने, देखो आप अगर ये जो प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट को करते समय आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, स्पेशली जब आप, एक मिनट रुकिए, स्पेशली जब आप ग्लैम के प्रोडक्ट से काम कर रहे हो ना, तो आपको थोड़ा जल्दबाजी करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत जल्दी क्योर होता है। ओके, बिकॉज मकसद क्या है इनका, इनके प्रोडक्ट का, कि काम जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि नेल आर्ट में थोड़ा समय तो जाता है। आपको आराम से 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं फॉर द नेल आर्ट, है ना। तो इस तरह से मैंने ब्रश की पीछे की मदद से उसका पेटल करेक्ट कर दिया, क्योंकि एक बार जब वो सेट हो जाता है ना तो वो दोबारा नहीं होगा। आप कुछ भी कर लो वो दोबारा से सेट नहीं होने वाला, वो पत्थर की तरह स्टोन कड़क हो जाएगी। आप या तो हटाओ या तो फिर से करो। अभी क्या मैं करूँ, इसको हटा ही देती हूँ। आई जस्ट डू, वंस इट गेट सेट, नो, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्या करो, उसे हटा दो बेटा, और
क्योंकि परफेक्ट शेप चाहिए तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। अभी मुझे दूसरा बिट मैं ली हूँ, ब्रश को क्लीन करके अच्छे से दूसरे बिट को दबाना शुरू करती हूँ। ये देखो ये हो गया। ब्रश को क्लीन कर रही हूँ। और आपको एक साथ ही डॉट्स रख के फिर उस पे काम नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ये जल्दी सेट होता है, तो आप अगर रख देंगे तो होगा क्या, वो सेट हो गया तो फिर आप उस पे काम नहीं कर पाओगे और वो टिप आपका बर्बाद हो जाएगा। सो यू शुड नॉट डू दैट, ठीक है, वो नहीं करना आपको। तो ये मैंने इस पे कर दिया, ठीक है। अभी मैं दूसरा बिट ले रही हूँ एंड देन यहाँ पे उसको फिनिशिंग लुक देती हूँ, क्योंकि एक और पेटल की स्पेस है, तो आई विल जस्ट सी क्या कर सकती हूँ मैं वहां पे, है ना। बट कोशिश करेंगे उसका उसका लुक खराब ना हो। ये हो गया मेरा सेंटर वाले फ्लावर पे काम। अब क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो वी विल नॉट, हम लोग इसी को ही एडजस्ट करेंगे विथ लिटिल बिट ऑफ स्प्रेडिंग। ओके, सो फाइन, ये हमारा यहाँ का फ्लावर हो गया। अभी उस पे जबरदस्ती हम लोग वहां पे पेटल्स नहीं रख सकते बिकॉज वी डोंट हैव अ स्पेस, है ना। तो हम लोग वहां पे स्किप कर देंगे प्लान पेटल रखने का, अदरवाइज इट विल बी ओवरलैप। अब मैंने यहाँ के स्टोन्स के लिए ले लिया है बिड। इस बिड को भी सेम ये रखा मैंने। योर ब्रशेस ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो आपकी हर आर्ट के लिए आपका ब्रशेस ही जिम्मेदार होते हैं। तो आपको अगर ब्रश की अच्छी नॉलेज है तो आप जो भी चाहे आर्ट क्रिएट कर सकते हो। इट्स टोटली ऑन ब्रश का एप्लीकेशन टेक्निक, ठीक है। ब्रश आप कैसे यूज कर रहे हो, नो किस तरीके से यूज कर रहे हो, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मेरा आर्ट यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। अभी मैं क्या करूंगी, थोड़े स्पेस है वहां पे मैं छोटे वाले राइन स्टोन्स को चिपका दूंगी ताकि ये और भी प्रिटी लगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़े से राइन स्टोन को निकाल लेती हूँ। ग्लू है मेरे पास, जेल ग्लू, इसको लेकर के यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, then we have a space here, we have a space here। अभी इन सबको मैं ये हो गया हमारा फुल एक्रिलिक एप्लीकेशन ऑन अ ओम्ब्रे इफेक्ट नेल, ठीक है। ये अब मैं इसे क्योर करा देती हूँ सबके साथ। और एक्रिलिक ऑलरेडी ड्राई हो चुका है तो एक्रिलिक को उसमें क्योर कराने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अभी जो मैंने जेल यूज किया था टू
स्टिक माई स्टोन्स, उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ यूवी लैम्प। ठीक है, क्लियर है सबको? देखो अभी जो आप लोग यहाँ पे जूम में क्योंकि देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी में आपको उतनी आई मीन क्लैरिटी नहीं आई होगी, विजिबिलिटी नहीं आई होगी। बट अगर आप लाइव अटेंड करना चाहते हो और देखना चाहते हो, एक बार और देखना चाहते हो आर्ट को, तो आप मेरे लाइव आ सकते हो। एवरी डे आई कंडक्ट अ लाइव सेशंस ऑन सैटरडे। इस सैटरडे मैं थोड़ा सा बिजी थी इसलिए मैंने कंडक्ट नहीं किया। ठीक है, और आज भी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो आज भी मैंने क्योंकि लाइव सेशन का बोला था, बट मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण आई कुडंट यू नो डू। ओके, तो अभी नेक्स्ट जो सेशंस है वो हमारा नेक्स्ट सैटरडे को रहेगा, तो जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन हो सकते हैं। और क्लासेस से रिगार्डिंग जो क्लास प्रमोशन की जो बैनर है वो मैं शेयर कर दूंगी। ये देखो, ये है कंप्लीट, है ना, ये कंप्लीट है। आपको ये नेल एक्सटेंशन की टिप जो है वो लगा के एक वीडियो मैं शेयर कर दूंगी मेरे इंस्टाग्राम पेज में। तो जिसको भी देखना है, क्योंकि अभी टाइम कम है, कभी भी ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो वो मैं रिकॉर्ड करके, ये पूरा एप्लीकेशन टेक्निक रिकॉर्ड करके मेरे इंस्टाग्राम में आज डाल देती हूँ, आप वहां से देख लेना। ओके, आपको क्लियरिटी के साथ इसका कैसा रिजल्ट आया है, ये कितना खूबसूरत दिख रहा